So can we start, Rahulji? Rahul is there? Hello. हेलो सुनील कुमार विमल जी। स्टार्ट कर दो सर। Yes, yes, sir. नमस्कार सर, दिस साइड आशीष आसोपा। Okay. Yeah. So can we start now? और यस सर, वी विल स्टार्ट, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द ग्रुप। Okay. डॉक्टर सुमी टू Koota. Dr. Vimal served as a professor of biomedicine at Unical and research professional with a strong expertise in neurobiology, neural tissue engineering, pharmacology, and chemical biology. Played lead roles in multiple projects at prestigious institutes and trained many undergraduate, postgraduate, and PhD students at different levels. Early postdoctoral training was accomplished at Biological Science and Engineering Department, IIT Kanpur, and then WPI International Institute for Integrative Sleep Medicine, University of Tsukuba, Japan. Further, he joined as a research scientist at Southwest University, China, in the Department of Pharmaceutical Sciences. His recognized research work published in reputed Q1 journals, which provided a layer of understanding and exploit the paramount strategies for the treatment of Alzheimer's and amyotrophic lateral sclerosis, wherein biomaterial, nanotechnology, and pharmacological approaches were followed to guide, restore, and regenerate neurons and their function through modulating the biochemical, biological, and physical events. Uh, I welcome you, sir, over here, and we are very lucky to have you in this PhD resource coursework for research. And now I hand over this session to you, sir. Okay. Thank you very much for a nice introduction, Dr. Means Asokaji. And Well, now I'm connecting with the students. So can they ask questions in between or in later sir, part? yes, sir. They can if you want to if you want an interactive session, you can follow that mode also. But one request is that bilingual language will be preferred for the session, English and Hindi, sir, because students are from both the streams medium. So I request you to please follow Okay, okay, bilingual okay. and Okay, I will try my best to accomplish in both languages. thank So, you. thank you for the introduction again. And so, good afternoon to all of you. How are you, students? I think you are doing well. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. You So, all okay, sir? there is some the technical things. So we will discuss your queries and your questions, whatever you want to ask apart from this session, like a content analysis, you can ask me in later part. So later 15 minutes we will discuss and acknowledge your queries. Okay, right? So please note down the slide number if you have any problem. Slide number. I am sharing the slides, PPT slide, PowerPoint slides to you. So here is I think you can see. Okay. So today we will discuss the research methodology. First of all, this comes in under unit 3 and is the one part. Our University of Kota have divided our syllabus in 5 units. Okay, so this will be around 60 marks.
So first 4 means 2 units, I think you have done. And now today we will discuss the unit 3, qualitative and quantitative methods. In this methodology, there is a one part, content analysis. So we will discuss on this today, and later in next session with me, we will discuss use of SPSS and other software package in your research. Okay. So now we will focus only on content analysis today. So let's डेस्क मीन्स हम स्टार्ट करते हैं कि ये कंटेंट एनालिसिस होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों होती है रिसर्च में, और इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है। शुरुआत में आपने देखा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू एंड मीन्स डिफाइन योर रिसर्च प्रॉब्लम्स, वो फर्स्ट पार्ट होता है। देन यू हाइपोथेसाइज योर रिसर्च वर्क, हाइपोथेसिस करते हैं आप, उसमें ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, देन गोल सेट करते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस होते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंटिफिकली जो साइंस वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं वो वेट लैब में भी होते हैं, यानी कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी लैब की जरूरत, लेबोरेटरी की जरूरत नहीं होती है, यानी कि टेस्ट ट्यूब, माउस, कंज्यूमेबल जो भी चीज यूज करते हैं वो नहीं यूज होते हैं। और अदर जो हमारा पार्ट होता है रिसर्च का, जिसको हम वेट लैब कहते हैं, उसमें हम हार्डकोर प्रैक्टिकल्स करते हैं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट जो आपने किया है, जैसे माउस पर कोई एक्सपेरिमेंट लगाना, किसी ड्रग का इफेक्ट देखना, या फिर कोई अदर चीज का हमें जैसे मलेरिया का हमें पता करना है कि कौन सी ड्रग का इफेक्ट ज्यादा है, मलेरिया जो 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 अफेक्टेड पर्सन्स हैं या पीपुल्स हैं कम्युनिटी में, तो उसके लिए हम वेट लैब का यूज करते हैं। तो दोनों में काफी डिफरेंस होता है, बट जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है कि आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब एक्सपेरिमेंट के बाद आप उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, यानी कि आप उसका इन्फरेंस कैसे करेंगे, आउटकम कैसे निकालेंगे। और जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आपने ये सारी चीजें की हैं, रिसर्च कर लिया, आफ्टर फिनिशिंग योर पीएचडी, इन बिटवीन यू हैव टू पब्लिश आर्टिकल विच इज शुड बी पब्लिश इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल। इम्पैक्ट फैक्टर आप लोगों को शायद पता होगा कि अगर आपका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है तो यू विल हैव टू चांस टू गो अब्रॉड, और कहीं भी इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वहां पर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपना कैंडिडेचर शो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे कई बार होता है ना कि आपने कंटेंट का एनालिसिस कर लिया, रिजल्ट आपके पास है, बट आप इन्फरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा जो हमने रिसर्च किया है वो कंक्लूडिव क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, सोसाइटी पर है, या फिर आपने जो भी चीज इंक्लूड की है अपने रिसर्च में उसका मीनिंगफुल कब निकलेगा। मीनिंगफुल जब होती है कोई रिसर्च, जब आप सोसाइटी के लिए या फिर किसी चीज के प्रिफरेंस को या फिर उसकी इंपॉर्टेंस को बताते हो कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, यानी कि उसके अप एंड कॉइंस को आप इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, प्लीज आप इस पे फोकस करिएगा कि कंटेंट को कैसे हम रीड करें, कैसे एनालिसिस करें, और किस क्या क्या तरीके होते हैं। तो कंटेम्परेरी मतलब जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं जो कंटेंट एनालिसिस के, वो हम डिस्कस करेंगे, और इसके इम्पोर्टेंस को, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट विद द ओवरव्यू, इसका परसेप्शन क्या है, कंटेंट एनालिसिस होता क्या है। तो ये कंटेंट एनालिसिस इज ए रिसर्च टूल, समझिएगा, रिसर्च टूल यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन वर्ड्स, थीम्स और concepts within some given qualitative data। डेटा दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है क्वालिटेटिव डेटा और एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा ऐसा होता है कि जैसे आपने साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मेंडल के लॉ पढ़े होंगे। मेंडल ने जो अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया था वो पी पे किया था, यानी कि पाइजम सेटाइवम, मटर बोलते हैं, गार्डन पी। इस पे इन्होंने क्वालिटेटिव मतलब जैसे फ्लावर का कलर देखा,
उसकी जो जो फ्लावर की पोजीशंस देखी, एक्सियल है कौन सा है, ठीक है, पी का शेप देखा, मटर के जो शेप, सीड का शेप है वो देखा। तो दीज आर द फिनोटिपिक थिंग्स। तो हम फिनोटिपिक चीजों से क्वालिटेटिव एक इन्फरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी क्वांटिटेटिव की, तो क्वांटिटेटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें जो उसके लॉ हैं और उसमें जेनेटिक्स, हार्डकोर जेनेटिक्स है कि इसमें म्यूटेशन कितना हुआ, ठीक है, इसमें कलरेशन के लिए कौन सा जीन मतलब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्या क्या चीजें हैं। तो हम बात करते हैं क्वांटिटी बेस्ड पे। तो क्वालिटेटिव इज वन साइड एंड क्वालिटेटिव इज अनदर साइड। तो किसी भी कंटेंट को एनालिसिस करने से पहले हमें क्वालिटेटिव चीजें मिलती हैं, फिर उसके बाद हम क्वांटिटेटिव पे जाते हैं। अगेन आई वांट टू गिव यू वन मोर एग्जांपल। जैसे मैंने बोला कि मलेरिया में है, हम एंटी जो क्विनोन होता है उसको यूज कर रहे हैं। अब क्विनोन की वजह से पेशेंट, मान लीजिए हमने 10 पेशेंट पे उसको इम्प्लीकेट किया और 10 Excuse me, पेशेंट। सर स्लाइड शो नहीं हो रही है, आपने प्रेजेंट हाँ जी सर, अब हो रही है। अब हो रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। तो जो अब मैंने उस चीज को, मान लीजिए क्विनोन को 10 लोगों पे इंट्रोड्यूस किया, या फिर मैंने कोई जो हाइपरटेंशन का ड्रग है, या फिर एंटी कैंसरस कोई भी चीज एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कैंसर में मैंने पैक्लीटेक्सेल का यूज किया, जो कि वाइडली वर्ल्ड वाइड यूज होती है पैक्लीटेक्सेल ड्रग। अब मैंने 20 पेशेंट पे उसको यूज किया, 20 पेशेंट में मान लीजिए 10 पेशेंट का पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। कुछ में सेल्स की जो जो डेथ है, वो डेथ रेट डिफरेंट वेरी करता है, किसी में 70 कर रहा है, किसी में 60 कर रहा है, किसी में 50 कर रहा है। तो दीज शोइंग द क्वालिटेटिव इफेक्ट। अब क्वांटिटेटिव क्या होगा कि मैंने नंबर्स पे अप्लाई किया 110 पे, और जो मेरे पास डेटा आ रहा है कि 20% पीपल पे ये इफेक्टिव है, यानी कि 10% पे इफेक्टिव है नहीं है। तो दीज आर द क्वांटिटेटिव concept of research. So the content, again I am telling you, the content analysis is a research tool used to determine the presence of certain words, themes or concepts within some given qualitative data. Okay. अभी जो हम बात करेंगे, जैसे हमने टेक्स्ट वगैरह लिखा है, उसमें भी हम फ्रेजेस वगैरह और ये सारी चीजों को कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। अच्छा, सेकंड थिंग है यूजिंग कंटेंट एनालिसिस। इसकी वजह से क्या होता है, रिसर्चर्स कैन क्वांटिफाई एंड एनालाइज द प्रेजेंस, मीनिंग्स एंड रिलेशनशिप ऑफ सच सर्टेन वर्ड्स, थीम्स और कंसेप्ट्स। इसमें क्या है कि हम रिलेशनशिप निकालते हैं कि कोई वर्ड है, जैसे अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट आने वाली स्लाइडों में कि वर्ड्स को कैसे लिया जाता है। थीम्स क्या है, आपने थीम कौन सा चूज किया है, कंसेप्ट क्या है, यानी कि आप हाइपोथेसिस में जो लिया है उसका कंसेप्ट क्या है। एज एन एग्जांपल, रिसर्चर्स कैन इवेल्युएट लैंग्वेज यूज्ड विद इन ए न्यू आर्टिकल। न्यूज आर्टिकल में जो यूज होता है टू सर्च फॉर बायस और पार्शियलिटी, यानी कि कोई भी जैसे पेपर पहले पब्लिश हुआ है और उसमें कोई कंटेंट के बारे में दे रखा है कि हाँ ये इसमें किसी ड्रग का इफेक्ट इतना आया, फिर आपने उसी टॉपिक पर कुछ एडवांस रिसर्च की, यानी कि नई ड्रग इंट्रोड्यूस की। अगर पहले वाला जो पेपर है उसका डेटा अगर रिप्रोड्यूस नहीं होता है, रिप्रोड्यूस इन द सेंस कि जो उन्होंने रिजल्ट्स क्लेम किए हैं अगर वो आपको अचीव नहीं होते हैं, so means there is a partiality or biasness of individual. Researchers can then make inference about the message within the text, the writers, the audience. Audience means जब आप कहीं प्रेजेंट करते हो तो वो ऑडियंस उसके सामने, या फिर कोई आपने आर्टिकल पब्लिश किया इंटरनेशनल जर्नल या नेशनल जर्नल में, तो जो कोई भी उसको रीड करता है दैट इज कॉल्ड ऑडियंस। एंड इवन द साइंस, कल्चरल एंड टाइम फॉर सराउंडिंग द टेक्स्ट। तो ये हमारा एक कंटेंट एनालिसिस का ओवरव्यू परसेप्शन हो गया कि बैकग्राउंड क्या होता है इसका। नाउ लेट्स डिस्कस विद द डिस्क्रिप्शन। अब हम इसके बारे में थोड़ा और एडवांस में चलेंगे कि सोर्सेस ऑफ डेटा कुड बी फ्रॉम इंटरव्यूज। अब डेटा हमने जो फर्स्ट पार्ट है, हम अभी यूनिट 3 पे फोकस कर रहे हैं, इससे पहले आपके सिलेबस में 2 यूनिट हो चुकी हैं।
तो वहां पे आपने देखा होगा कि हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मेशन होता है या जेनेसिस होता है, लेटर ऑन आप गोल्स वगैरह हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह डिसाइड करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, आप एक्सपेरिमेंटल, यू विल डू योर एक्सपेरिमेंटल वर्क, एंड नेक्स्ट स्टेप डेटा कलेक्शन। तो डेटा जो कलेक्ट करते हैं इट फ्रॉम इंटरव्यूज, अगर आपका जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट का है, जैसे आपने कहीं सुना होगा कि पर्टिकुलर किसी किसी फिल्म स्टार को इतने वोट्स मिले, वो टॉप प्रायोरिटी पे है या उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है, तो वो क्या इंटरव्यूज वगैरह के बेस्ड होते हैं। या फिर कोई ड्रग के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई कोरोना में के टाइम में आपने ये वाला जैसे एस्ट्राजेनेका यूज किया, या फिर जॉनसन एंड जॉनसन का यूज किया, या सीरम का किया, भारत सीरम का किया। तो ये डिफरेंट ब्रांड्स हो गए, और इनका इंडिविजुअल जो फीडबैक होता है उसके बेसिस पे कोई डेटा कलेक्ट करना। क्वेश्चंस ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अपने साइंस फील्ड में भी होते हैं, आर्ट में भी होते हैं। आपको एक अच्छा रिलेवेंट इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जो जो उसका वो निकालते हैं, क्या कहते हैं प्रीकास्टिंग निकालते हैं कि हाँ क्या कौन जीत रहा है कौन हाथ रहा है। तो वो क्वेश्चंस का सेट ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, वो सेट ऑफ क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं, और उनसे डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, मतलब वो उसका मीनिंग निकालते हैं कि हाँ ये इसके इन्फरेंस होता है, तो दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। फील्ड रिसर्च जो कि आपका है, फील्ड रिसर्च आप में से कुछ लोग वाइल्ड लाइफ रिसर्च से भी क्या कहते हैं इन्वॉल्व होंगे, जो वाइल्ड लाइफ में कर रहे होंगे कि किसी सैंक्चुरी में आपको एंटीलोप हो, या फिर ये जो अपने राजस्थान में फ्लाइंग स्क्विरल वगैरह जैसे सीता माता में काफी वाइडली प्रेजेंट होता है, कि उसके पैटर्न का, कि वो फ्लाइंग डिस्टेंस कितना करता है, उसका हैबिटाट क्या होता है, उसकी हैबिट्स क्या होती हैं, ये सारी चीजों को लेके। तो ये क्या फील्ड रिसर्च होता है। कन्वर्सेशन इज अनदर बेंचमार्क। जब तक आप किसी जैसे फील्ड रिसर्च में कर रहे हैं, कन्वर्सेशन ना हो तो आपको कुछ आउटपुट नहीं मिल पाएगा। और लिटरली एनी अक्यूरेंस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज सच एज आर्टिकल्स, आपने किसी भी बुक्स वगैरह या आर्टिकल्स, जैसे प्रीवियसली पब्लिश कोई आर्टिकल हुआ, उससे आपने डेटा को कंपेयर करना, जैसे मैंने अभी लास्ट वाली स्लाइड में डिस्कस किया था कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी इट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर कोई डेटा पहले से क्लेम कर रखा है, पब्लिश हो चुका है, और आप उसी चीज को रिट्राइव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन एस्टिमेशन, आपने प्रोटीन का कोई कर्व बनाया एल्ब्यूमिन का 10, 20, 30 एंड 14 माइक्रोग्राम पर, तो स्टैंडर्ड कर्व बन गया। अब जो आपका बना है और किसी दूसरे वाले पहले से रिपोर्टेड है, उसमें स्टेटिस्टिकली अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, थोड़ा बहुत बायसनेस आता है, बायसनेस इन द सेंस कि थोड़ा बहुत एरर आता है, वो एरर इंडिविजुअली भी हो सकता है, वो इक्विपमेंट के थ्रू भी हो सकता है, किसी भी थ्रू हो सकता है, लेकिन वो इतना नहीं होगा कि वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस करा सके। जैसे आपने लगाया कि 65 मिलीग्राम पर ml, तो वो ऐसा नहीं है कि 90 हो जाएगा आपके केसेस में, 60 का 67 भी हो सकता है और 63 भी हो सकता है। ओके, ऐसे डिस्कशंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, स्पीचेस, मीडिया, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, दीज आर द ये क्या है, ये डेटा के कलेक्ट करने के लिए आप इनको टूल्स बना सकते हैं। सर स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। स्लाइड शो नहीं हो रहा है। ओके, तो चेंज नहीं हो रही है, शो तो हो रही है। हाँ चेंज नहीं किया है अभी, मैं फर्स्ट वाले पे ही डिस्क्रिप्शन पे चल रहा हूँ। फर्स्ट जो जो स्लाइड है, स्लाइड नंबर 4th, ओवरव्यू के बाद हम 4th नंबर वाली स्लाइड्स पे चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन पे, कि ये कंटेंट एनालिसिस के बारे में डिस्क्रिप्शन क्या होता है। A single study may analyze various form of text in its analysis. To analyze the text using content analysis, in the text must be coded or broken down into manageable code categories for analysis. ऐसा नहीं है कि आपने कोई कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं और आप उसमें काफी बिग और थ्योरेटिकली पैराग्राफ को यूज करें। आपको उसमें क्या कैटेगराइज करना पड़ता है, जैसे कि आपने किसी गोल को सेट करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। फॉर दैट टाइप वी यूज द कोड। वंस द टेक्स्ट इज कोडेड इनटू कोड कैटेगरीज,
द कोड्स कैन देन बी फर्दर कैटेगराइज इनटू कोड कैटेगरीज, यानी कि जो कोड्स हैं वो कोड कैटेगरी में कैटेगराइज होंगे टू समराइज द डेटा इवन और फर्दर। आप डेटा को फर्दर अगर कैटेगराइज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, कोड कैटेगरीज कहलाएंगे। और ये आपके रिसर्च में यूजफुल होता है जब आप उसको फाइनल स्टेज में ले जाने वाले होते हैं। एंड द नाउ लेट्स स्टार्ट विद द definition of content analysis. Actually these comes in your exam for if जब आप आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले पेपर्स में अपीयर होंगे तो some questions come from this part, like who is the father of quantitative content analysis, who will give the this definition। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये होलिस्टी करके है 1968। 1968 में होलिस्टी नाम के कोई साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने डेफिनेशन दिया था एनी टेक्निक अबाउट द कंटेंट एनालिसिस, के कंटेंट होता क्या है। तो एनी टेक्निक फॉर मेकिंग इन्फरेंस बाय सिस्टमेटिकली, देखिए ये सिस्टमेटिकली एंड ऑब्जेक्टिविकली। सिस्टमेटिकली मतलब आप सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, जैसे आप क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं हम सिस्टमेटिक्स, जैसे पहले फाइलम, ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, ये स्टेप से आता है। ऐसे इसमें सिस्टमेटिकली एंड ऑब्जेक्टिव ये चीजें होती है। आइडेंटिफाइंग, स्लाइड नहीं दिख रही है सर, स्लाइड नहीं दिख रही है। स्लाइड नहीं दिख रहा? जी सर। अब दिख रहा? हेलो? नो सर, नो अब सर, दिख- नहीं दिख रही है अभी तक। अब दिख रहा? हाँ सर दिख रही है, अब दिख रही है। Okay, okay, okay. So this is talking about this slide number 5, talking about the definition of content analysis. So in this part, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं कि कंटेंट एनालिसिस होता क्या है, और छोटा छोटा क्वेश्चन आता है कि किसने दिया था, वो वाज द फादर ऑफ कंटेंट एनालिसिस। तो इसमें हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो in 1968 Hollister was a scientist who gave the definition about the content analysis. Any technique, it's a kind of technique for making inference। inference मतलब हम इससे कोई result या इसका conclusion निकालें। inference by systematically and objectively to identifying special characteristic of messages। messages in the sense कि जो भी आपका कोई hypothesis आपने choose किया है, चाहे आपके किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप बॉटनी से हो, जोलॉजी से हो, बायोटेक से हो, किसी से भी हो, जब आप किसी प्रॉब्लम को चूज करते हैं उसको सिस्टमेटिकली उसको अचीव करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स को टिक करते हैं, यानी कि आप अचीव करते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बाद आपको उसको एनालिसिस करना होता है, और दैट इज कॉल्ड, जो आपका एक क्या बोल मैसेज देता है या उसके बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई आर्टिकल पब्लिश करना है और आपने काम किया है कि डॉक्सोरोबिसन या पैक्लीटेक्सेल, किसी ड्रग को हमने पैक्लीटेक्सेल या डॉक्सोरोबिसन में से कोई ड्रग यूज किया है, कैंसर पेशेंट पे यूज किया है, और दैट वाज इन ए बिनाइन कंडीशन, सेकंड 2 मतलब स्टेज 2 है या 3rd है। उसमें कंटिन्यूस आपने एक तो लगातार यूज किया, यानी कि अल्टरनेट 1 डे 2 डे ऐसे करके, और एक को यूज किया वीकली, और एक को मंथली यूज किया। तो तीनों के रिजल्ट पेशेंट पे देखेंगे आपको डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। अब डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे तो आप इन्फरेंस क्या निकालेंगे, कंक्लूजन क्या निकालेंगे, सिस्टमेटिकली करेंगे ना, कि पेशेंट में बिनाइन कंडीशन सभी में थी, तीनों कैटेगरी के अंदर, सेकंड 2 थी, और बाकी के जो एनवायरमेंटल फैक्टर थे, टेम्परेचर, हीमोग्लोबिन, बॉडी में जो क्या कहते हैं, जो डिजीज का अक्यूरेंस कितना था, ये सारी चीजें आपने क्या रखा, बना रखी हैं, स्टेबल है। और उसके अलावा आपने ड्रग ट्रीटमेंट दिया है तो उससे इफेक्ट जो आया है उसमें बायसनेस नहीं रहेगी, वो बिल्कुल ट्रू रिजल्ट होगा।
अब वो आपको पब्लिश करना है। अब पब्लिश करना है तो आप उसको टाइटल क्या देंगे? हेलो, 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 कैन यू हियर मी? यस सर, लिसनिंग। यस सर, आ रही है Yes, sir. आपकी आवाज। हाँ सर, आ रही है। ओके, ओके। अब आप उसको टाइटल देना है। ये एक बहुत ही टीडियस वर्क होता है और ये चीज आपको सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि पीएचडी ये एक छोटा गोल है आपके लिए। आप इसको अचीव करोगे, अच्छे से करोगे, बट आपको एक अच्छा रिसर्चर या एकेडमिशियन बनना है तो आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप करनी ही पड़ेगी कि ये कैसे होता है। इवन मैंने भी मतलब छोटी जगह से स्टार्ट किया अपने रिसर्च को। मैं सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जैसे इंट्रोडक्शन में बताया अशोका जी ने, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से किया। लेकिन मुझे मेंटर्स वगैरह, मेरे जो कुलीग्स हैं, मेरे मतलब जो सर्कल था हमारा, वो काफी अच्छा था और फ्रूटफुल था। तो उन चीजों को सीखा हमने। अब मैं वही चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आपको कोई हेल्प कर देगा कि हाँ चलिए इसमें टाइटल ये दे दिया, लेकिन आपको वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से डेवलप होती है? वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से होती है। इसलिए ये जितने भी आपके 5 यूनिट हैं, प्लीज इनको अच्छे से फोकस करिएगा। एक बार के लिए पीएचडी का काम थोड़ा डिले हो जाए उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये जो पढ़ने वाली चीज है कि कैसे किसी चीज को बैकग्राउंड कैसे सेट करना है, किस किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, हमें कंटेंट को कैसे पढ़ना है, कैसे राइट अप करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि टाइटल जब तक आपको देना नहीं आएगा किसी पेपर का, तो मीनिंग नहीं निकलता कि आप एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं। ठीक है। और आपने देखा होगा कि एक ही रिसर्च के मतलब डिफरेंट जो डायमेंशंस होते हैं, उनके जो पेपर्स के टाइटल होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, और वो काफी कैची बनाए जाते हैं। कैची इन द सेंस हाईलाइट, जैसे आपने न्यूज रोजाना सुनते हैं तो छोटी सी चीज को वो लोग इतना हाईलाइट करके बताते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। वो किस लिए? अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं करना। अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, अच्छे का मतलब इन द सेंस कि जो आपने सोच रखा है उस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और ऐसा कभी मत सोचना कि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आते हैं। रिजल्ट नेगेटिव भी आते हैं। वो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर थोड़ा सेटअप होना चाहिए कि मैं नेगेटिव रिजल्ट को भी शो किया जाता है, पब्लिश होते हैं और अच्छी उनको ऑडियंस मिलती है। यानी कि फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जो चीज आ रही है उसको आप एज इट इज प्रेजेंट करिए, क्योंकि ये एक दिन की जर्नी नहीं है। आप अपने थीसिस में लिख दोगे चलो ठीक है, लेकिन जब आप किसी इंटरनेशनल जर्नल में कोई पेपर पब्लिश करते हो तो दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन गूगल जब तक रहेगा ना तब तक आपका नाम रहेगा। तो प्लीज डोंट डू नेगेटिव थिंग्स। चाहे आपको 1 महीना लेट या कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, गलत चीज मत करना। ठीक है। तो होलिस्टी एंड इन्होंने दिया था डेफिनेशन, टेक्निक है, इट्स अ इन्फ्रेंस बाय सिस्टमेटिकली एंड ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाइंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैसेजेस। अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोले, एन इंटरप्रेटिव एंड नेचुरलिस्टिक अप्रोच। इट्स बोथ ऑब्जर्वेशनल में क्या आता है? क्वालिटेटिव ट्रेट्स, एंड नरेटिव इन नेचर एंड रिलायस लेस ऑन द एक्सपेरिमेंटल elements normally associated with the scientific research, reliability, validity and generalizability। ये जो डेफिनेशन है ये 1994 में यूज की थी। एक जर्नल था एथनोग्राफी, तो इसका मैंने रेफरेंस लिया है, एथनोग्राफी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च एंड नरेटिव इंक्वायरी 1994 एंड 2012 में इस डेफिनेशन को फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया गया था, या इसको हाइपोथेसाइज किया गया था। अब इन दोनों डेफिनेशन जो होलिस्टी वाले हैं और जो मैंने ये बताया है नैरेटिव इंक्वायरी वाला, ये रिसेंटली, मतलब रिसेंटली इन द सेंस कि ये बाद में आए। लेकिन इन सबसे पहले एक बेरेल्सन करके, बेरेल्सन 1952 में साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस को, कि ए रिसर्च टेक्निक फॉर द ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक एंड क्वांटिटेटिव
आप गौर करिएगा, इस यहाँ पर भी सिस्टमेटिक एंड क्वांटिटेटिव लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो हॉलिस्टी 1968 में इन्होंने भी सिस्टमेटिकली एंड ऑब्जेक्टिवली वर्ड दिया था। तो ये क्या है? सिस्टमेटिकली एंड क्वांटिटेटिवली डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनिफेस्ट कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी। तो आप इनमें से कोई सी एक डेफिनेशन याद कर लें, और बेरेलसन 9050 को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये फादर ऑफ क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, यूज ऑफ कंटेंट एनालिसिस। यूज क्या होता है कंटेंट एनालिसिस का? हम कर क्यों रहे हैं इस चीज को? इसके पीछे मोटिव क्या है? इसको हम नहीं करें तो क्या होगा? तो इन सब चीजों का आंसर हम इस स्लाइड से देखेंगे। तो आइडेंटिफाई द इंटेंशंस, मतलब ये क्या करता है? पहचान करता है इंटेंशन। इंटेंशन इन द सेंस कि कोई प्रॉब्लम है या कोई इश्यू है। फोकस और कम्युनिकेशन ट्रेंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मीन्स या तो आप अपने जैसे साइंटिफिकली हम साइंस वाले बैकग्राउंड में लेंगे तो किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर यही चीज हम कन्वर्सेशन या फील्ड रिसर्च या ओपन एंडेड क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो वो क्या होता है? इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में करते हैं। इसके बारे में हमें पता लगता है, इसके आइडेंटिफाई द इंटेंशंस। ठीक, स्लाइड चेंज नहीं हुई है डेफिनेशन के बाद। 6 नंबर स्लाइड आपके पास ओपन है क्या? कौन सा नो नंबर? सर। नो सर। 5 अब नंबर आ रहा ओपन है सर। Fifth one, sir. It's the fifth one. 6 नंबर आ रहा है। No, sir. 5 ही आ रही है सर। यूज ऑफ कंटेंट एनालिसिस, ये आप देख पा रहे हैं? So it is coming No, definition of sir. content analysis. Definition of content analysis. अच्छा, डेफिनेशन, आई थिंक अब ये 6 नंबर वाला स्लाइड आप लोगों को दिख रहा है क्या? यूज ऑफ कंटेंट एनालिसिस। Yes, sir. यस सर दिख रहा है अब। ओके ओके, मुझे लगता है कुछ थोड़ा टाइम के लिए हैंग हो, फ्रीज हो जाता है ये, कोई बात नहीं। तो हाँ, इसका कंटेंट एनालिसिस का यूजेस क्या होता है? आइडेंटिफाई द इंटेंशंस। फर्स्ट टॉपिक अगर क्वेश्चन आता है ये आपके इसमें रिसर्च में मेथोडोलॉजी वाले एग्जाम में, तो ये आप यूजेस में इन पॉइंट्स को जो मैंने साइन कलर से कर रखे हैं इनको आप लिखेंगे। आइडेंटिफाई द इंटेंशंस, इसमें हम बताएंगे कि फोकस ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रेंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ओके, सेकंड वन क्या है? डिस्क्राइब एटीट्यूडनल and behavioral responses to communications, ये दूसरा हो गया। determine the psychological और emotional state of presence और groups, थर्ड नंबर। reveal, ये क्या चीजों को रिवील करते हैं? reveal international differences in communication content। ये communication content आप लोग समझते हैं? कम्युनिकेशन कंटेंट जो आप पेपर वगैरह पब्लिश करते हैं या किसी बुक का रेफरेंस लिया है या फिर आर्टिकल, जर्नल, मैगजीन किसी का भी लिया है, उसमें रिवील जो डिफरेंस होता है उसको रिवील करता है। रिवील पैटर्न इन कम्युनिकेशन कंटेंट। ओके, जो कम्युनिकेट करते हैं आप उसमें भी जो भी बायस मतलब डिफरेंस होता है उसको भी पता लगाते हैं। प्री टेस्ट एंड इम्प्रूव्स एन इंटरवेंशन ऑफ सर्वे प्रायर टू लॉन्च। ये क्या है? प्री टेस्ट एंड इम्प्रूव एंड इंटरवेंशन। ये हम अगर एनालिसिस करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं तो हम जो क्या कहते हैं इसके बारे में जो इन्फरेंस हमने निकाला है वो क्या सही डायरेक्शन में है या नहीं है, या उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, वो सारी चीजों को हम क्या क्या करते हैं? पता लगाते हैं। एनालाइज फोकस ग्रुप इंटरव्यूज एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन टू कॉम्प्लीमेंट
क्वांटिटेटिव डेटा, यानी कि पहले क्वालिटेटिव से हम क्वांटिटेटिव यानी कि उस जो क्या बोलते हैं इंटरप्रेटिव डेटा होता है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो ये क्या है, इसके यूजेस हैं, कंटेंट एनालिसिस के यूजेस हैं। तो प्लीज इसको आप क्या कहते हैं, इनको लिखिएगा, इनको एग्जाम में आते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब करने होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंटेंट एनालिसिस हमने पढ़ लिया कि इसका ओवरव्यू क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, उसके डेफिनेशंस पढ़ लिए। अब बात आती है कि इनके टाइप्स कितने होते हैं, टाइप ऑफ कंटेंट एनालिसिस। तो ये जो वाइडली और एक्सेप्टेबली, कुछ लोग इसको 3 में कैटेगराइज करते हैं, लेकिन आइडियली देखा जाए तो इट्स एन अंडर 2। देयर आर 2 जनरल टाइप ऑफ कंटेंट एनालिसिस। नंबर फर्स्ट वन इज द कंसेप्चुअल एनालिसिस, जो कंसेप्ट बेस्ड होता है, जैसा नाम में लिखा हुआ है, डेफिनेशन में हुआ है या फिर वर्ड में है। दूसरा होता है रिलेशनल एनालिसिस, ये एडवांस स्टेज में जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे नेक्स्ट आने वाली स्लाइडों में कि इनके कैसे किया जाता है, इनको कंसेप्चुअल एनालिसिस को अचीव कैसे किया जाता है, कैसे इसके स्टेप्स हैं इसको डिसाइड करने के। ऐसे ही रिलेशनल वाले एनालिसिस का हम करेंगे। तो फर्स्ट आई वांट टू से द डेफिनेशन ऑफ कंसेप्चुअल एनालिसिस। तो कंसेप्चुअल एनालिसिस जो होता है वो डिटरमाइंस द एग्जिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंसेप्ट्स इन ए टेक्स्ट, यानी कि किसी भी टेक्स्ट में जो आपने एग्जिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी, यानी कि किसी के जो कंटेंट आपने लिखा है उसमें उसका एग्जिस्टेंस कितना है और फ्रीक्वेंसी कितना है, ये दोनों चीजों को नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है रिलेशनल एनालिसिस। रिलेशनल एनालिसिस डेवलप द कंसेप्चुअल एनालिसिस फर्दर बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग कंसेप्ट इन ए टेक्स्ट, यानी कि ये रिलेशन जो होता है उसको डिफाइन करता है। ईच टाइप ऑफ एनालिसिस में, यानी कि दोनों ही कंसेप्चुअल एज वेल एज रिलेशनल एनालिसिस may lead to different result, conclusions, interpretations and meanings. Please focus on this, the cyan color text. ये दोनों जो होते हैं each type of analysis, यानी कि conceptual and relational analysis may lead to different result. Please focus on this word, different result, conclusions, interpretations and meanings, यानी कि इन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन है, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन द कंसेप्चुअल एनालिसिस, जो हमने पहले अभी यहाँ टाइप्स में पढ़ा था, कंसेप्चुअल एंड रिलेशनल एनालिसिस। तो हम अभी स्लाइड नंबर 8 पर इसको डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। स्लाइड नंबर 8 आप लोगों को दिख रहा है? हेलो? नहीं सर, नहीं सर, नहीं दिख रही है, ओनली 6 वाली दिख रही है। 7 नंबर वाला अभी, अब 7 नंबर वाला, यस यस अभी सर। हाँ सर, अब शो हो रही है 7 वाली। ओके। इसके बारे में जो मैंने अभी बोला था वो मतलब वो सुनाई दिया था या नहीं? सर सुनाई दिया था, बट ये वाली चेंज नहीं हुई थी, मतलब हाँ 6 वाली पे ही थे हम तब। ओके 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 ओके। अभी दिख रहा है? छोटा है विंडो लेकिन आप लोग ये देख सर पा दिख रहे रहा हैं? है, दिख ओके। रहा है सर 7 वाला। तो जो हमने शुरुआत में हमने ओवरव्यू, डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें कर ली थी। अब बात आती है कि ये टाइप्स के मतलब जो कंटेंट एनालिसिस है, मतलब एक ही तरीके से किया जाएगा या इसके कुछ डिफरेंट डायमेंशन है। तो ये आइडियली 2 तरीके से हमने डिवाइड किया है। एक तो होता है कंसेप्चुअल एनालिसिस और दूसरा होता है रिलेशनल एनालिसिस। ठीक है, कंसेप्चुअल एनालिसिस में डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंसेप्ट इन ए टेक्स्ट।
रिलेशनल में हम क्या करते हैं, डेवलप्स द कंसेप्चुअल एनालिसिस फर्दर बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप, यानी कि पहले कंसेप्चुअल करेंगे फिर उसमें जो रिलेशनशिप है उसके बारे में इससे पता लगता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखने वाली है कि जो दोनों ही है, कंसेप्चुअल और रिलेशनल, इन दोनों के जो रिजल्ट हैं, कंक्लूजन है या इनके इंटरप्रिटेशन है, जो कुछ भी बोलो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आता है कंसेप्चुअल एनालिसिस, जो फर्स्ट वाला है हम उसको अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्लाइड नंबर 8 आपको दिख रहा है? यस सर, दिख रही है अब। यस सर। ओके ओके। जो कंसेप्चुअल एनालिसिस होता है, टिपिकली पीपल थिंक ऑफ कंसेप्चुअल एनालिसिस व्हेन दे थिंक ऑफ कंटेंट एनालिसिस। मतलब किसी के भी दिमाग में अगर कंटेंट एनालिसिस के बारे में बोल दिया तो वो सबसे पहले सोचता है कि ये कंसेप्चुअल एनालिसिस के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि पहला बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कंसेप्चुअल एनालिसिस होता है। उसके एडवांस या उसकी जो फर्दर स्टेप होता है वो होता है रिलेशनशिप वाला। तो इन कंसेप्चुअल एनालिसिस ए कंसेप्ट इज चोजन। सबसे पहली बात क्या है कि इसका डेफिनेशन में ही है, कंसेप्चुअल में कंसेप्ट को हम चूज करेंगे फॉर एग्जामिनेशन एंड द एनालिसिस। अब ये क्या करता है, इन्वॉल्व्स क्वांटिफाइंग एंड काउंटिंग इट्स प्रेजेंस। ठीक है, द मेन गोल इज टू एग्जाम, ये ध्यान रखें, कंसेप्चुअल जो एनालिसिस है उसका मेन गोल क्या है, द मेन गोल इज टू एग्जामिन द अक्यूरेंस ऑफ सेलेक्टेड टर्म्स इन द डेटा। अगर आपका जो साइंस वाला डेटा है, यानी कि कोई पेपर आपने लिख रहे हैं, डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं, कंटेंट को एनालिसिस कर रहे हैं, तो देखिए टेक्स्ट की बात आती है, क्योंकि दोनों ही आते हैं, एक तो डेटा आता है और टेक्स्ट, दोनों ही कंटेंट एनालिसिस के अंदर में आते हैं। अगर डेटा की बात करेंगे तो डेटा एनालिसिस के लिए आपकी नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताएंगे कि बायोस्टेटिस्टिक का यूज करते हैं, टेस्ट वगैरह लगाते हैं, टी टेस्ट हुआ, काई स्क्वायर टेस्ट हुआ, एनोवा टेस्ट हुआ, ये बहुत सारी चीजें हैं उनको लगाते हैं। लेकिन टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, आप लोग सुन पा रहे हैं क्या मुझे? यस सर। स्लाइड नंबर 8 दिख रहा है? यस सर। ओके, तो जो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पीएचडी में तो आपने जो कर लिया वो ठीक है, लेकिन जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, कहीं पर फैकल्टी वगैरह बनते हैं या एकेडमिशियन या किसी भी कंपनी में या कहीं पर भी जाते हैं आप जॉब के लिए, तो वहाँ साइंस वाले फील्ड में, आर्ट वाले में नहीं, लेकिन साइंस वाले फील्ड में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। फाइनेंशियल सपोर्ट आप किससे लेते हैं? जो फंडिंग एजेंसी होती हैं, जैसे इंडिया में डीबीटी हुआ, टीएसटी हुआ, टीआईएफआर हुआ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, मतलब एजेंसीज हैं जो फंड प्रोवाइड करते हैं रिसर्च के लिए। अब वहां पर आपने सुना होगा कि पहले प्रपोजल सबमिट होता है। प्रपोजल इन द सेंस कि कोई हाइपोथेसिस होती है, कोई प्लान किया आपने और उसको आपने सबमिट किया। अब वो सबमिट होता है, उसके बाद उसका होता है रिव्यू, और वो टॉप साइंटिस्ट, अच्छी कम्युनिटी होती है, वो चीजों को रिव्यू करते हैं। रिव्यू में राइटिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइटिंग अच्छा, कैची और कहते हैं ना कि एकदम अट्रैक्टिव इन द सेंस कि मीनिंगफुल और लगे कि हाँ ये थोड़ा अच्छा है, कहते हैं ना कि दिखता है वो बिकता है, वो कई बार हमारे मतलब वो यहाँ पर ये ट्रू हो जाता है कि जो अच्छा लिखा है उसको थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। और प्रॉब्लम को कैसे प्रेजेंट किया है, ये भी एक कंटेंट एनालिसिस का पार्ट होता है। तो हमें वहां पर डबल मीनिंग, यानी कि डबल इन द सेंस कि बार बार किसी चीज को यूज नहीं करना है, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट क्लास में 10-5 मिनट के अंदर बताऊंगा कि हाउ टू राइट ए प्रपोजल फॉर फंडिंग। लेकिन यहाँ पर कंटेंट एनालिसिस में जो दे रखा है कि द टर्म में भी क्या कहते हैं, इन्वॉल्व क्वांटिफाइंग एंड काउंटिंग इट्स प्रेजेंस। आप किसी चीज को बार बार प्रपोजल में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि प्रपोजल का जो वर्ड लेंथ होता है वो लिमिटेड होता है। अब किसी ने बोला होगा कि 500 या 5000 वर्ड में आप लिखिए, तो आप उसको बहुत ही
प्रिसाइज तरीके से लिखना होता है। आपने रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़े होंगे अभी, तो उसमें एक सेक्शन होता है एब्स्ट्रैक्ट। हेलो। हाँ जी सर, पढ़े हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट में आपने पढ़े होंगे कि 100 या 150 वर्ड्स होते हैं, और वो 150 वर्ड जो आपका आर्टिकल 6000 वर्ड में लिखा है, उसकी ओवरऑल समरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी जर्नल या किसी भी पेपर को आप पढ़ते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट से अंदाजा लग जाता है कि हाँ, इसके अंदर क्या एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, क्या इनके इन्फरेंस आए हैं, और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। सेम थिंग अप्लाई होता है जब आप प्रपोजल को सबमिट करते हो या राइटिंग प्रोसेस में होती है, तो वहां पर हमें ध्यान देना होता है कि कोई भी वर्ड बार बार रिपीट ना हो। ओके। The main goal is to examine the occurrence of selected terms in the data. Terms may be explicit or implicit. Explicit जो terms are easy to identify, ये easily हो जाता है। और next level में हम क्या करते हैं, coding of implicit term is more complicated. You need to decide the level of implication and base judgment of subjectivity. Like आपने कोई जो इश्यू है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये दो टर्म आगे हम डिस्कस करेंगे कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि कंटेंट एनालिसिस में पार्टिसिपेट करती हैं। देयरफॉर कोडिंग ऑफ इम्प्लिसिट टर्म्स इन्वॉल्व्स यूजिंग ए डिक्शनरी और कॉन्टेक्चुअल ट्रांसलेशन रूल्स और बोथ। इसमें क्या है कि आप जो मैगजीन है या प्रीवियस आर्टिकल है जिसको आप बोलते हैं ना रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसमें कैसे लिखा है, क्या चीजें उसमें रिलायबिलिटी के लायक हैं, किसका वैलिडेशन होना है, उन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है वो बताता है हमें कि कंसेप्चुअल एनालिसिस को कैसे किया जाए। ये स्लाइड नंबर 9 आप लोग देख पा रहे हैं, स्लाइड नंबर 9। नो सर, नहीं दिख रहा। 9 अब दिख रहा है। यस सर। यस सर, अब दिख रहा है। तो इसमें हम 9 नंबर में डिस्कस करेंगे कि कंसेप्चुअल जो फर्स्ट पार्ट है कंटेंट एनालिसिस का, कंसेप्चुअल एनालिसिस, उसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द रिसर्च क्वेश्चन, जो आप लोगों ने ऑलरेडी हाइपोथेसाइज कर लिया होगा, एंड चूज ए सैंपल और सैंपल्स फॉर एनालिसिस, कि हमें किसका एनालिसिस करना है, किसका नहीं करना है। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, द टेक्स्ट मस्ट बी कोडेड इनटू मैनेजेबल कंटेंट कैटेगरीज। कोड को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिर उसको सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दिस इज ए बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन कैसे हुआ कि आपने कोई प्रॉब्लम को चूज किया, प्रॉब्लम को चूज करने के बाद आपने, अब ऐसा तो नहीं है कि आप सिंगल स्टेप में ही आप उसको अचीव कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ड्रग बनानी है या फिर कोई प्लांट एक्सट्रैक्ट है, उसका आप एफिकेसी चेक करना चाहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट में इसकी एफिकेसी क्या है, तो इसके डिफरेंट आप स्टेप्स को सेलेक्ट करेंगे। पहले आप मटेरियल देखेंगे कि हाँ मटेरियल प्लांट कौन सा है, प्लांट के बाद प्लांट का पार्ट कौन सा है, या फिर होल प्लांट यूज करना चाहते हो। नेक्स्ट लेवल में आप उसको प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, या फिर एल्कोहलिक होना चाहिए, या फिर किसी और सस्पेंशन में होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन कब आते हैं आपके माइंड में, अगर आपने वाटर कंटेंट बना दिया, बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर एब्जॉर्ब कर पाएगा तो इसकी अवेलेबिलिटी कितनी होगी, अवेलेबिलिटी इन द सेंस कि किसी चीज को डिमिनिश करने के लिए आपको ड्रग को करीब 2 घंटे रुकना है बॉडी में। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि 2 घंटे के लिए आपको ड्रग बॉडी में सस्टेन करना चाहिए, लेकिन आपने जो एक्सट्रैक्ट बनाया है वो वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल तुरंत मतलब विद इन 30 मिनट आपकी किडनी में पहुंच रहा है। तो ड्रग का इफेक्ट होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, और किसी डिजीज को क्या क्योर करने के लिए वो क्या है सफिशिएंट हो।
फिर आप क्या करेंगे, उसमें कोई दूसरा सबस्ट्रेट में चेक करेंगे, हो सकता है एल्कोहलिक बनानी पड़े, हो सकता है जो और सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे ड्रग वगैरह में यूज होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, जो आप जितने भी सिरप वगैरह यूज करते हैं जो सस्पेंशन होता है, ऐसा तो बोलते हैं ना शेक वेल बिफोर, यानी कि उसको हिला लेना चाहिए जब सिरप यूज करते हैं। मोस्टली उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग का या फिर पार्टिकल का किसी का, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो सस्पेंशन जो बनाते हैं वो यूनिफॉर्म ही रखता है 90%, बट जब टाइम ज्यादा हो जाता है तो वो सेटल डाउन होने लगता है। लेकिन वाटर के केस में क्या है, तुरंत सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये जो इशू उठा रहे हैं आप, टाइटल में तो देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ पापाया एक्सट्रैक्ट ऑन कैंसर, छोटा सा टाइटल है, लेकिन इसमें हमने इश्यूज कितने, पहले तो हमें प्लांट को देखना है, प्लांट का पार्ट कौन सा यूज करना है, कितना कंसंट्रेशन में होना चाहिए, ये डिफरेंट क्या है, डायमेंशन है, स्टेप्स हैं रिसर्च को कंक्लूजन तक ले जाने के लिए। ओके, तो दिस इज अ बेसिकली प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव रिडक्शन। अब कंटेंट एनालिसिस जब फाइनल स्टेज में पहुंचते हैं तो हम चीजों को क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं कि नहीं हमें 20% नहीं चाहिए, हमें 30% वाला सोल्यूशन चाहिए, या फिर हमें ड्रग 2 घंटे के लिए नहीं 4 घंटे के लिए बॉडी में सस्टेन कराना है। ठीक है, तो ये क्या है, रिडक्शन पार्ट है। By reducing the text to categories, the researchers can focus on and code for specific words or patterns that inform the research question. ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है ये आप लोग समझ पा रहे हैं? हेलो, ये लास्ट वाला सेंटेंस जो है वो समझ पा रहे हैं आप? हेलो, यस सर, समझ रहे सर। सेलेक्टिव रिडक्शन करके हमको फोकस करना है अपने ऑब्जेक्टिव्स पर। यस यस यस, फाइन, गुड गुड। तो ये प्रोसेस है, ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं लेकिन आपके रिसर्च में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। तो प्लीज इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझें, और बाद में मैं आप लोगों को अगर ये कहेंगे तो मैं कुछ टेक्स्ट वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे चीजें करनी है। ठीक है, एक बुक भी है CR कोठारे की जो काफी इंडियन यूनिवर्सिटीज में वेल नोन है और काफी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो या तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप मेल कर सकते हैं मुझे, तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अब होता है नेक्स्ट है जनरल स्टेप फॉर कंडक्टिंग ए कंसेप्चुअल कंटेंट एनालिसिस। ये वाला तो हमने कंटेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ लिया। अब होता है जनरल स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग ए कंसेप्चुअल कंटेंट एनालिसिस। अब कंसेप्चुअल एनालिसिस के लिए, कंटेंट एनालिसिस के लिए क्या करना होगा, तो डिसाइड द लेवल ऑफ एनालिसिस। डिसाइड करना पड़ता है हमें कि लेवल क्या रखेंगे, वर्ड, वर्ड सेंस, फ्रेज, सेंटेंस और थीम्स। ये टेक्स्ट वाले सेक्शन में होता है। ओके, सेकंड वन है डिसाइड हाउ मेनी कंसेप्ट टू कोड फॉर। अब हमें कंसेप्ट कितने हैं, डेवलप ए प्री डिफाइंड और इंटरेक्टिव सेट ऑफ कैटेगरीज और कंसेप्ट्स। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो डिसाइड आइदर ए, मतलब ये जो कर रखा है जैसे ये वाला है ए, डिसाइड आइदर ए, इसमें क्या होता है, टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी टू ऐड कैटेगरीज थ्रू द कोडिंग प्रोसेस, कोडिंग प्रोसेस। और बी वाला क्या है, टू स्टिक विद द प्री डिफाइंड सेट ऑफ कैटेगरीज। यानी कि आपके पास जो कोई भी इश्यू है, प्रॉब्लम है जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, या टेक्स्ट में या फिर आपके एक्सपेरिमेंट, या तो आप प्रीवियसली जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे यानी कि थोड़ा स्लाइटली मॉडिफिकेशन करेंगे। ओके, या फिर आप जो पहले वाला टेक्स्ट है टू स्टिक विद द प्री डिफाइंड सेट ऑफ कैटेगरीज, यानी कि जो आपने पहले डिसाइड कर रखा है आप उसी के साथ जाना चाहेंगे। अब इसमें जो ऑप्शन ए है, यानी कि जो हम फ्लेक्सिबिलिटी वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्शन ए अलाउ फॉर द इंट्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यू एंड important materials that could have significant implications to one's research question। यानी कि
जो इंट्रोडक्शन एंड एनालिसिस हम करने वाले हैं, न्यू एंड इम्पोर्टेंट मटेरियल्स दैट कुड हैव सिग्निफिकेंट, उसका सिग्निफिकेंट implication to one's research question। कोई भी इश्यू है उसको आपने एड्रेस किया, अब एड्रेस करने में और उसको एनालिसिस करने में आपको एक यहाँ पे वर्ड दिखाई देगा, सिग्निफिकेंट। हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर फ्रॉम दिस वर्ड? आप लोगों में से कितने लोग इस चीज को जानते हैं सिग्निफिकेंट हमें कब यूज करना होता है? हेलो, जी सर, सिग्निफिकेंट मतलब हम क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, सिग्निफिकेंस, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? सिग्निफिकेंस वो आप दूसरा वर्ड समझ रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट रिलेटेबल इम्प्लीकेशंस, उस कैटेगरी से रिलेटेबल और क्या उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशंस। ओके, और कोई बताना चाहेगा? अच्छा, सिग्निफिकेंट फॉर मीनिंगफुल सर, एंड सिग्निफिकेंस वर्ड है वो हम सब क्वालिटी के लिए यूज करते हैं। गुड गुड। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, कुड हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन टू वंस रिसर्च क्वेश्चन। ऑप्शन बी है, अलाउ द रिसर्चर्स टू स्टे फोकस्ड एंड एग्जामिन द डेटा फॉर स्पेसिफिक कंसेप्ट्स। जो स्पेसिफिक कंसेप्ट है ये उसके साथ में हमेशा क्या बोलेंगे उसको, अलाउ I cannot find a suitable word. Allow the researchers to stay focused and examine the data for specific concept। ये specific concept के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है? तो ये these are the type of no these are the importance of the conceptual content analysis। And next जो हमारा दो टॉपिक, हम दो चीज हमने पॉइंट, डिसाइड द लेवल ऑफ एनालिसिस, decide how many concepts to code for, and third one is the decide whether to code for existence or frequency of a concept। इसमें क्या होता है, the decision changes the coding process। कैसे चेंज होता है? when coding for the existence of a concept, the researcher would count a concept only once if it is appeared at least once in the data and no matter how many times it's appeared। यह भी नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि जैसे एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, जैसे फार्मर और फार्मर्स और फार्मिंग, तीन वर्ड है। अब ये साइमल्टेनियसली यूज होते हैं, लेकिन इनका यूजेस है वो कैसे करना है, फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए, और इसका मीनिंगफुल यानी कि सिग्निफिकेंट मीनिंगफुल कैसे होगा, ये इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है when coding for the frequency of a concept, यानी फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि बार बार रिपीटिशन नहीं होना चाहिए किसी, जैसे थीसिस राइटिंग आप कर रहे हैं तो थीसिस में बार बार नहीं लिखेंगे कि आपने कि कोई प्लांट का बेस्ड ड्रग यूज की है, जैसे आपने किया विदानिया सोमनिफेरा, तो आप उसको बार बार हर जगह विदानिया सोमनिफेरा हैव दिस प्रॉपर्टी, विदानिया सोमनिफेरा हैव रूट प्लांट, और ये मतलब अननेसेसरी जार्गन्स को हमें रिड्यूस करना है, तो वो रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन है जो फोर्थ वन है, डिसाइड ऑन हाउ यू विल डिस्टिंग्विश अमंग कंसेप्ट। अब ये आपको कैसे चूज करना होगा, शुड टेक्स्ट बी कोडेड एग्जैक्टली एज दे अपीयर और कोडेड एज द सेम when they appear in different forms। okay, for example, अब यहाँ पे देखिएगा, for example, dangerous versus dangerousness। अब ये दो वर्ड हैं frequently किसी टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं, कि जैसे कि कोई एनिमल है वो डेंजरस है, और डेंजरसनेस मतलब उसके जो एडजेक्टिव टाइप से यूज हो रहा है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे कि वो टेक्स्ट रिपीट ना हो। The point here is to create coding rules so that these word segments are transparently categorized in a logical fashion।
The rules could make all of these word segment fall into the same category, or perhaps the rule can be formulated so that the researcher can distinguish these word segment into separate codes. Okay, कहने का मीनिंग ये है कि अननेसेसरी वर्ड रिपीटिशन के अलावा सेंटेंस इतना लेंदी और बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं वहां तक के बीच में आपको मीनिंग पता ही ना लगे कि हाँ ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें मीनिंग क्या निकलेगा, यानी कि इसका जो इन्फरेंस है, इस टेक्स्ट का इन्फरेंस है, वो क्या आ रहा है। क्योंकि आपको समराइज वे में सारी चीजें, रिपोर्ट्स वगैरह हैं या फिर थीसिस है, ये चीजें लिखनी होती हैं। कहीं आपको एब्स्ट्रैक्ट भेजना है तो वो भी समराइज होता है, तो आप उसमें अननेसेसरी आप किसी भी एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के देखिएगा, आज ही देखिएगा, बाद में कोई भी वर्ड एब्स्ट्रैक्ट में 2-3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट जिस चीज पे आप वो काम कर रहा है वो वर्ड 2 बार या 3 बार रिपीट हो सकता है, अदरवाइज कोई वर्ड उसमें रिपीटिशन नहीं मिलता। What level of implication is to be allows? Words that imply the concepts or word that explicitly state the concept. For example, dangerous versus the person is scary. ये दोनों वर्ड का मीनिंग आप देखें तो हम किसी चीज को डेंजरस भी करते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ ये डेंजरस है, यानी कि ऑलरेडी वो उसके नेचर के बारे में हमें पता लग गया। अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? द पर्सन इज स्कैरी वर्सेस द पर्सन कुड कॉज हार्म टू मी। मतलब 3 अलग अलग चीजें हो गई, समझ रहे हैं आप? हेलो? जी सर। हाँ, ये तीनों अलग अलग चीजें हो गई। जैसे किसी टेक्स्ट में आपने यूज किया डेंजरस और फिर आपने यूज किया स्केरी, द पर्सन इज स्केरी वर्सेस द पर्सन कुड कॉज हार्म टू मी। मतलब अगर आपको समराइज वे में वर्ड की लिमिटेशन है तो डेंजरस यूज करेंगे। अगर आप थीसिस में लिख दें द पर्सन इज स्केरी, द पर्सन कुड कॉज हार्म टू मी, मतलब ये बड़ा शब्द है, बड़ा लिखा हुआ है, तीनों चीज में कोई डिफरेंस नहीं है अगर जनरली देखें तो। लेकिन जहां हमें लिमिटेशन चाहिए, जहां हमें मीनिंगफुल चाहिए, एक्स्ट्रा फैसिनेटिंग चाहिए, तो हमें वर्ड को चूज करना होता है कि हमें कौन सा वर्ड यूज करना है। और ये वर्ड कब यूज होते हैं वो डिपेंड करता है उसमें फ्रेम कैसा है, यानी कि जो आपने राइटिंग पैराग्राफ लिखा है उसमें कौन सा सूटेबल है। कहीं देखेंगे आपको डेंजरस वर्ड सूटेबल लगेगा, किसी जगह आप देखेंगे कि आपको स्केरी वर्ड सूटेबल लगेगा। तो ये डिपेंड करता है टेक्स्ट पे, ठीक है। अब है इसका डेवलप रूल्स फॉर कोडिंग योर टेक्स्ट आफ्टर डिसीजन ऑफ स्टेप 1 to 4, यानी कि जो हमने लास्ट में जो 1 से लेकर 4 तक ये पॉइंट, डिसाइड द लेवल ऑफ एनालिसिस, डिसाइड हाउ मेनी कंसेप्ट ऑफ कोड्स, decide whether to code for existence or frequency of the concept. 4th number, decide on how you will distinguish among concept. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डेवलप रूल्स फॉर कोडिंग योर टेक्स्ट आफ्टर डिसीजन ऑफ स्टेप्स, जो हमने लास्ट में 4 अभी किए हैं, आर कंप्लीटेड, ए रिसर्चर कैन बिगिन डेवलपिंग रूल्स फॉर ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट इनटू कोड्स। अब उस टेक्स्ट को वो कोड्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं या करते हैं। दिस विल कीप द कोडिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसिस्टेंट। ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसिस्टेंट दिख रहा है 13 नंबर स्लाइड? जी सर, अब दिख रहा है। ओके, सो आफ्टर डिसाइड द स्टेप्स, तो ये क्या है? दिस विल कीप द कोडिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसिस्टेंट। The researcher can code for exactly what he or she wants to code. Validity of the coding process is ensured when the researcher is consistent and coherent in their codes, meaning that they follow their translation rules. In content analysis, obeying by the translation rule is equivalent to validity. Validity अभी हम डिस्कस करेंगे कि वैलिडिटी का क्या इंपॉर्टेंस है।
ये सारे रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं इक्विवेलेंट टू वैलिडिटी। 6 नंबर है डिसाइड व्हाट टू डू विथ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब उसका क्या किया जाए जो इंफॉर्मेशन आपको इररिलेवेंट लग रहा है या फिर जिसका कोई मीनिंग नहीं है, आपको लगता है कि मुझे ये चीज प्रेजेंट करनी चाहिए या फिर ये शो करना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप इररिलेवेंट चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कोरोना में एस्ट्राजेनेका इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव कंपेयर टू अदर ड्रग्स। तो इस सेंटेंस में मैंने लगा दिया कंपेयर टू अदर ड्रग्स, यानी कि मुझे अननेसेसरी चीजों को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब अदर ड्रग में जो भी अवेलेबल है उनसे कंपेयर हो गया, एस्ट्राजेनेका को मैंने बेटर बता दिया। अब मैं यही सेंटेंस को बोलूं कि एस्ट्राजेनेका इज फार बेटर देन सीरम बायोटेक, तो मैंने दो वेरिएबल्स जो कि डिफाइन है, डिफाइन इन द सेंस कि उधर मैंने एस्ट्राजेनेका को डिफाइन कर दिया, इधर मैंने क्या कहते हैं भारत सीरम वाला जो वैक्सीन है उसको डिफाइन कर दिया। मैं केवल दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं। ठीक है, तो अब इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सा हो गया, मैं केवल यही बोलूं कि नो, in 2020 when the corona pandemic is arrived, the AstraZeneca have 100% result against corona। तो मैंने irrelevant इंफॉर्मेशन को हटा दिया। अब ये irrelevant इंफॉर्मेशन कहाँ, कब और कैसे, ये तीनों चीजें डिफरेंट है। मुझे किस प्लेटफॉर्म पे ये चीज बोलनी है वो डिसाइड करती है कि कौन सी इरेलेवेंट करनी है, मुझे कौन सी रिलेवेंट करनी है। जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एस्ट्राजेनेका की तरफ से, लाइक आई एम एम्प्लॉय इन एस्ट्राजेनेका, और मुझे वो चीज प्रेजेंट करनी है वर्ल्ड के सामने इन ग्लोबली प्लेटफॉर्म, तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरी जो ड्रग है कंपेयर टू अदर ड्रग्स इज बेटर, यानी कि मैंने सभी जो और चीजें हैं उनको इंफीरियर में ला दिया और अपने आप को सुपीरियर में ला दिया। अगर मैं यहीं पर इस चीज को बोलूं कि कंपेरेबल टू भारत सीरम, तो मैंने केवल अपनी ड्रग को केवल जो सीरम बायोटेक वाला ड्रग है उसके साथ कंपेयर किया, यानी कि मेरी जो अपीयरेंस है वो थोड़ी नैरो कर ली मैंने। और जब मैंने वर्ड को बोला कि कंपेयर टू अदर ड्रग्स, मींस जो सारी मार्केट में अवेलेबल ड्रग है मैंने उनके साथ अपने आप को कंपेयर किया है, तो ये क्या होगी, रिलेटेडनेस होगी, वैलिडिटी होगी। कैन यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay. To decide what to do with the irrelevant information, should this be ignored? Example, common English words like the and, ये टेक्स्ट के कंसेप्ट में चल रहा है कि हम टेक्स्ट में कैसे हटाएंगे, और जो मैंने बोला है वो हम कंटेंट एनालिसिस बात कर रहे हैं रिजल्ट के बेस में, डेटा के बेस में, और यूज्ड टू री-एग्जामिन द कोडिंग स्कीम इन द केस दैट इट वुड एड टू द आउटकम फॉर कोडिंग। तो जो चीज हमने बोली है वही है। नंबर 7 है कोड द टेक्स्ट, दिस कैन बी डन बाय हैंड और बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर। अब ये दो तरीके से की जा सकती है, बाय हैंड की जा सकती है या यूजिंग सॉफ्टवेयर। नाउ दिस डे देयर आर सेवरल सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट who perform these things for us, बट आप सब लोग जानते हैं कि जो टेक्निकली चीजें हैं उनके कुछ ड्रॉबैक भी रहते हैं। ड्रॉबैक इन द सेंस कि जब आप बाय हैंड करते हो तो एक एक स्टेप आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हो, सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो, सॉफ्टवेयर में जैसे आपने लगा दिया कि चैट जीपीटी आपने यूज किया टेक्स्ट को चेक करने के लिए, तो वो जो डेटा उसके पास अवेलेबल है चैट जीपीटी के पास, यानी कि उसमें जो वर्ड की वोकेबुलरी है, डिक्शनरी है, उसमें जो अवेलेबल है डेटा वो केवल उसी के बेसिस पे लिखेगा। लेकिन रिसर्च ये इन्वेंशन होती है, ये अलग, मतलब जो चीज है उसके
सराउंडिंग से आगे चल के जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे एग्जिस्टिंग नॉलेज को निकालना, यही रिसर्च होती है। वो चैट जीपीटी कर सकती है, लेकिन इतना एफिशिएंटली नहीं कर सकती जितना कोई एक इंडिविजुअल स्टूडेंट या साइंटिस्ट सोचता है। तो हम इसको बाय हैंड भी कर सकते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर। बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, रिसर्चर कैन इनपुट कैटेगरीज and have coding done automatically, quickly and efficiently. By the software program, when coding is done by hand, is a researcher can recognize error far more easily. जो मैंने अभी आपको बोला, सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय हैंड करते हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो क्या है? कैन रिकॉग्नाइज एरर्स फॉर मोर इजीली। एग्जाम्पल, टाइपोस मतलब टाइपिंग कर रहे हैं, या मिस स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगा। इफ यूजिंग कंप्यूटर कोडिंग, टेक्स्ट कुड बी क्लीन्ड ऑफ एरर्स टू इंक्लूड ऑल अवेलेबल डेटा। दिस डिसीजन ऑफ हैंड वर्सेस कंप्यूटर coding is most relevant for implicit information, where categories preparation is essential for accurate coding. Okay, the next one is analyze your स्लाइड विजिबल नहीं है सर, 13 नंबर वाली स्लाइड। जी सर, अभी विजिबल है। ओके। तो अभी हमने जो 7 नंबर वाला डिस्कस किया था, कोड द टेक्स्ट, ये बाय हैंड भी हो सकता है और बाय सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। बाय हैंड करने से हमें थोड़ा बेनिफिट ये मिलता है, एडवांटेज, कि हमें एरर्स का पता लग जाता है और स्पेलिंग्स वगैरह जो होते हैं वो मिस स्पेलिंग के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर वगैरह में ये थोड़ी इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जज नहीं कर पाता है कि कौन सा वर्ड एग्जैक्टली यूज करना है। तो नेक्स्ट वन है एनालाइज योर रिजल्ट, draw conclusion and generalization where possible, determine what to do with irrelevant, जो हमने अभी बोला था, unwanted और unused text। इसके लिए हमें unused text है या irrelevant information है, उसके लिए क्या है? या तो आप उसको री-एग्जामिन करिए या फिर आप उसको हटाइए। तो री-एग्जामिन, इग्नोर और रेसनेस द कोडिंग स्कीम, इसमें 3 चीजों को हम फॉलो करते हैं। या तो आप उसको इग्नोर करिए, या फिर आप उसको देखिए कि एग्जामिन, री एवेल्युएट करिए कि क्या इसका किया जाना चाहिए, क्या ये हमारे लिए इन फ्यूचर, आपके केस में नहीं बट समवन कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस डेटा। कई बार होता है कि आपने पायलट स्टडी लगाया और आप नहीं चाहते हैं कि मैं किसी आपके मेंटर या फिर बॉस को ये डेटा दिखाऊं, पता नहीं गलत होगा या सही होगा, कैसे है, आपने मान लीजिए छुपा लिया, मिसलीड किया, लेकिन आप उसको बिल्कुल ही हटा दो तो वो किसी काम का नहीं है। आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, बट ये थोड़ा जानने वाली चीज है कि वो आपके लिए हो सकता है कि आप उसका इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। मे बी समवन कैन एड्रेस द कंसेप्ट, जो उस इंफॉर्मेशन में, कोई इंफॉर्मेशन होती है, देखिए वो रिलेवेंट होती है और इरेलेवेंट होती है, लेकिन रिलेवेंट को तो हर कोई जज कर लेता है, लेकिन इरेलेवेंट को रिलेवेंट बनाना है, वो भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो डेटा कोई सा भी हो, ठीक है, इरेलेवेंट भी है, आप उसको हटाएं नहीं, रखें, अपने पास रखें। तो वही चीज कह रहे हैं, री एग्जामिन करिए या फिर इग्नोर करिए उसको। रीजनेस कोडिंग स्कीम, इंटरप्रेट रिजल्ट्स केयरफुली एज कंसेप्चुअल कंटेंट एनालिसिस कैन ओनली क्वांटिफाई द इंफॉर्मेशन। जो कंसेप्चुअल कंटेंट एनालिसिस है वो क्वांटिफाई करता है द इंफॉर्मेशन। टिपिकली जनरल ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इसमें हम जनरल जो पैटर्न किया जा रहा है, ट्रेंड्स कैसे हैं, वो इन सब चीजों को पता करते हैं। अब रिलेशनल एनालिसिस जो हमारा दूसरा वाला था, कि एक तो हो गया कंसेप्चुअल एनालिसिस, अब दूसरा है रिलेशनल एनालिसिस। तो कंसेप्चुअल एनालिसिस फर्स्ट स्टेप था, प्रिलिमिनरी स्टेप था। अगर किसी ने बोला है कंटेंट एनालिसिस तो माइंड सबसे पहले जाता है कंसेप्चुअल एनालिसिस के बाद।
लेकिन उसके अलावा भी दूसरा एनालिसिस होता है कंटेंट के लिए, वो है रिलेशनल एनालिसिस। तो रिलेशनल एनालिसिस में क्या होता है, बिगिन लाइक ए कंसेप्चुअल एनालिसिस, वो एज यूजुअल लाइक ए कंसेप्चुअल एनालिसिस होता है, उसी तरीके से होता है। वेयर ए कंसेप्ट इज चूजन, जब आपने कोई कंसेप्ट चूज कर लिया फॉर एग्जामिनेशन, हाउएवर द एनालिसिस इन्वॉल्व एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट्स। केवल एक ही चीज डिफरेंट है इसमें, रिलेशनशिप, जो कि नाम से पता पड़ रहा है। जो कंसेप्ट्स होते हैं उन कंसेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। इंडिविजुअल कंसेप्ट आर व्यूड एज हैविंग टू नो इनहेरेंट मीनिंग एंड रादर द मीनिंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ द रिलेशनशिप अमॉन्ग कंसेप्ट। Relationship analysis, to begin first identify a research question and choose a sample or samples for analysis, जो कि प्रोसेस होता है। The research question must be focused, मतलब ये है कि जो एनालिसिस है, जो कंसेप्ट है, रिसर्च क्वेश्चन है, वो मस्ट इम्पोर्टेंट है, उस पर हमें फोकस करना है, उसी के अराउंड घूमना है। ये नहीं है कि हम कोई दूसरे फोकस करने लगे इन बिटवीन रिसर्च, मतलब हाइपोथेसिस के, नहीं मुझे ये भी करना है, क्योंकि आप अकेले इंसान नहीं है जो सारी चीजों को करें या कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी एक अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश करने के लिए एटलीस्ट अगर आप सिंगल मेन पावर हैं, सिंगल मेन पावर मतलब आप सारे एक्सपेरिमेंट खुद कर रहे हैं, तो इट्स नॉट ए सिंगल डे जर्नी, इट विल टेक टाइम। आपको एफर्ट रोजाना लगाना होता है, कंटिन्यूस सोचना पड़ता है। कई बार एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, कई बार रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो उस केसेस में क्या होता है कि आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। और आप, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप केवल जो हाइपोथेसिस वाला पार्ट है या ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, गोल वाला जो आपने सेट किए हैं, उसको बहुत प्रिसाइजली और केयरफुली चूज करें। क्योंकि इन बिटवीन अगर चेंज करते हैं तो वो काफी आपके कहते हैं ना कि रिवोल्यूशन टाइप से उथल पुथल वाला हो जाता है, तो वो उन सब चीजों से बचना चाहिए। रिसर्च को सिंगल फोकस्ड रखना चाहिए। वही बोल रहे हैं कि क्वेश्चन मस्ट बी फोकस्ड सो द कंसेप्ट टाइप्स आर नॉट ओपन टू इंटरप्रिटेशन एंड कैन बी समराइज्ड। नेक्स्ट जो है इसका लेवल, सेलेक्ट टेक्स्ट फॉर एनालिसिस, सेलेक्ट टेक्स्ट फॉर एनालिसिस केयरफुली बाय बैलेंसिंग हैविंग एनफ इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन आपके पास सफिशिएंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने 2 पेपर पढ़े हैं और 2 पेपर के बेसिस पे आपने कोई हाइपोथेसिस कर ली और कंसेप्ट का एनालिसिस करने लगे कि नहीं भाई मैं तो ये करूंगा। तो एक थॉरोली, मतलब हो सकता है किसी दूसरे ने उस पर टॉपिक पे काम किया हो, तो आपका सर्वे एटलीस्ट, आई एम रिकमेंडिंग, अगर आप कोर्स वर्क के बाद करते हैं तो कम से कम 2 पेपर रोजाना पढ़िएगा प्लीज, एटलीस्ट 3 महीने तक। और फिर आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी कि आपने 2-3 महीने अगर 2-2 पेपर रोजाना पढ़े, तो आफ्टर 3 मंथ आपको सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने की और टाइटल पढ़ने की जरूरत होगी। पेपर आपके पास 90% समझ में आ जाया करेगा। इस प्रोसेस को थोड़ा कंटिन्यूस रखें अगर इस फील्ड में जाना है या रिसर्च ओरिएंटेड रहना है। कि by balancing having enough information for through analysis, so results are not limited with the having information that is too extensive, so that the coding process becomes too arduous and heavy to supply meaningful and worthwhile result. Okay, तो फोकस्ड कर मतलब चीजों पे टारगेट करना होता है। ये नहीं कि अननेसेसरी चीजों को भी आप अपने इन्वॉल्व कर रहे हैं। टेक्स्ट और जो रिलेशनशिप है, जैसे आपने बोला कि इसके कॉन्टेक्स्ट में हम रिलेशनशिप के बीच में बोले कि भाई पी के सीड का साइज और कलर के साथ मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं और उसका मैं कॉम्बिनेशन को चेक कर रहा हूँ, ठीक है कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बीच में मन आया कि आपको 2 दिन अच्छे रिजल्ट मिल गए, तीसरे दिन आपके मन में आया कि नहीं मैं अब 2 के साथ नहीं 4 वेरिएबल्स के साथ काम करूंगा। 4 वेरिएबल्स क्या है कि मैं प्लांट की हाइट को भी देखूंगा और
क्या कहते हैं उसके जो फ्लावर के पेटल्स और सेपल के पैटर्न को भी देखूंगा। तो बीच में आपका ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर, हाँ ठीक है, आपको आगे टाइम मिलेगा, उन सब चीजों को आप अपने नेक्स्ट एजेंडा में लिखें कि मैं हाँ इन फ्यूचर आई वांट टू डू ऑन वर्क ऑन दिस टॉपिक, वो होना चाहिए। ये नहीं बीच में आपने इंट्रोड्यूस कर लिया, वो अननेसेसरी आपके डेटा को, टेक्स्ट को, एनालिसिस को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, देयर आर 3 सब कैटेगरीज ऑफ रिलेशनशिप। जैसे हमने कंसेप्चुअल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, ऐसे रिलेशनल एनालिसिस टू चूज फ्रॉम प्रायर टू गोइंग ऑन द जनरल स्टेप्स। इसमें स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? 3 सब कैटेगरीज होती हैं। अफेक्ट, एक्सट्रैक्शन एंड इमोशनल एवोल्यूशन ऑफ कंसेप्चुअल explicit in the text. Challenges to this method is that emotions can vary across time, populations and space. However, it could be effective at capturing the emotional and psychological state of the speaker or writer or the text. ये एक सेट ऑफ डेफिनेशन है जो हम एक्सट्रैक्शन में अफेक्ट करती है। नेक्स्ट वन है प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस। प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस ये क्या होता है? an evolution of the co-occurrence of explicit concepts in the text. Text is defined as a starting of words called as a window that is scanned for the co-occurrence of concept. The result is the creation of a concept matrix for a group of interpreted co-occurring concept that would suggest an overall meaning. ये कैटेगराइज करना होता है, प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस करना होता है। नेक्स्ट वन इज ए कॉग्निटिव मैपिंग। कॉग्निटिव मैपिंग में क्या करते हैं? ये विजुअलाइजेशन टेक्निक फॉर आइदर विजुअलाइजेशन टेक्निक नॉर्मल टेक्निक जो आपको देख के पढ़ के और समझ आ जाती है। इफेक्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस, जो पहला एक्सट्रैक्शन किया है, दूसरा वाला था प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस, फिर उसके बाद में कॉग्निटिव एनालिसिस। Cognitive mapping attempts to create a model of the overall meaning of the text, such as a graphic map that represents the relationship between concepts. इसमें क्या है? cognitive mapping में आप किसी जो ओवरऑल आप आजकल आपने देखा होगा, अभी आप आगे देखेंगे कि जब आप पेपर कोई कम्युनिकेट करते हैं तो आजकल मैंडेटरी कर दिया है किसी इंटरनेशनल जर्नल में कि आपको एब्स्ट्रैक्ट के साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना होता है, जो कि आपकी ओवरऑल रिसर्च को, एब्स्ट्रैक्ट तो हो गया वर्ड में, और ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट होता है जो फिगर्स के थ्रू आपको ओवरऑल प्रेजेंट करना होता है कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा। ठीक है, मैं अभी आपको कैसे, चलिए मैं बताऊंगा आपको कि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। तो ये इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला एक्सट्रैक्शन है, दूसरा प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस है, थर्ड वन इज द कॉग्निटिव मैपिंग। अब इसके जनरल, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे, जनरल स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग ए रिलेशनल कंटेंट एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं हम, स्टेप्स क्या फॉलो करते हैं? डिटरमाइन द टाइप ऑफ एनालिसिस, हम डिटरमाइन करते हैं कि एनालिसिस किस टाइप का होगा। वंस द सैंपल हैज बीन सेलेक्टेड, सैंपल को सेलेक्ट करना होता है, उसके करने के बाद द रिसर्चर्स नीड टू डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप टू एग्जामिन एंड द लेवल ऑफ एनालिसिस। अब इसमें एग्जामिन किस चीज का करना है, ये इसके अंदर आता है, जैसे वर्ड फ्रेज, सेंस, फ्रेज, सेंटेंस, थीम्स। थीम्स के अंदर जो हम साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली चीजों की बात करते हैं कि कौन सी चीज इफेक्टिव है, कौन सी नहीं है। Reduce the text to categorize and code for words or patterns. A researcher can code for existence of meaning of words. जो हम लास्ट में अभी पढ़े हैं उन्हीं को ये समराइज कर रहा है। Reduce the text to categorize and code with the word pattern. A researcher can code for existence of meaning of words. Next is explore the relationship between concepts. Once the words are coded, the text can be analyzed for the following. अगर आपने पहले कोड कर दिया, फिर कोडिंग का यूज क्या होगा? तो ये क्या करेगा? नंबर 1, strengthen द रिलेशनशिप, डिग्री टू विच
टू और मोर कंसेप्ट आर रिलेटेड, जो भी आपने कंसेप्ट लिए हैं उनके बीच में रिलेटेडनेस क्या होगी। साइन ऑफ रिलेशनशिप दूसरा टॉप वो रहेगा पॉइंट। आर कंसेप्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, अब इसमें जैसा नाम से पता है कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली अगर दो वेरिएबल्स को हमने किया है, जो भी हमने फ्लावर का मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट से लिए थे कि एक्सियल और सेपल पेटल, अब इसमें पॉजिटिव जा रहा है, जैसे मैंने वेरिएबल्स को लिया तो वेरिएबल्स के साथ दूसरे में पॉजिटिव इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीज होता है, ये आप पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं रिलेटेडनेस या रिग्रेशन और कोरिलेशन। आप स्टैटिस्टिक में आपको शायद पढ़ाएंगे दूसरे फैकल्टी के रिग्रेशन और कोरिलेशन क्या होता है। तो दैट इज इट्स अ काइंड ऑफ कोरिलेशन। रिलेशनशिप मतलब एक वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल के साथ चेंजेस करने, जैसे टाइम मई और जून में आपका टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन बरसात के चांसेस कैसे होते हैं, तो ये क्या है, रिलेटेडनेस को बता रहा है कि मई और जून आते ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव में गया, लेकिन बरसात के चांसेस कम होंगे तो वो नेगेटिवली वो हो गया, क्या कहते हैं इससे रिलेट कोरिलेट। थर्ड वन क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट कैटेगराइज एग्जिबिट किस डायरेक्शन में जाता है। फॉर एग्जाम्पल x implies for buy और x occurs before buy, if x then buy of, if x is the primary motivation of buy, जो मैंने अभी बताया मई जून का और टेम्परेचर का, या फिर आप वो लगाएं कि मंथ के साथ, जैसे डे मॉर्निंग से इवनिंग आवर्स के बीच में टाइम बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, ये रिलेटेडनेस होगी, पॉजिटिवनेस होगी। लेकिन आफ्टर नाइट मतलब इवनिंग द टेम्परेचर विल गिव इन डिक्रीज, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव साइन हो गया। तो वही इस चीज को हमने इसमें एक्स और वाई के थ्रू दिया है। डी, कोड द रिलेशनशिप, ए डिफरेंस बिटवीन कंसेप्चुअल एंड रिलेशनल एनालिसिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट आर कोडेड। ओके, परफॉर्म्ड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, ये नेक्स्ट लेवल का है जिसमें टेस्ट लगाए जाते हैं कि कोई चीज स्टैटिस्टिक लगाने के बाद चेंजेस हैं या नहीं है। उसमें एक इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस होती है जिसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। अगर आप ध्यान रखिएगा कि आपको अपने रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, यानी कि किसी चीज का प्रभाव दिखाने के लिए, आपको नल हाइपोथेसिस को हर हाल में क्या करना होता है, डिसओबे कराना होता है। अगर नल हाइपोथेसिस एप्लीकेबल है तो आपका रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट होते हैं। मैप आउट रिप्रेजेंटेशन सच एज ए डिसीजन मैपिंग एंड मेंटल मॉडल्स, जो मैंने अभी हम लास्ट में कर रहे थे कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को, जो पिछले तीन या 4 नंबर की स्लाइड में हमने किया था, डिस्कस किया था। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होते क्या है, तो रिलायबिलिटी बिकॉज ऑफ द ह्यूमन नेचर ऑफ रिसर्चर्स कोडिंग occurs, कोडिंग जो एरर्स है कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, मतलब होता है कि एरर्स थोड़ी बहुत आती हैं बट इट कैन बी, हम उनको हटा नहीं सकते हैं बट मिनिमाइज कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ एरर है वो कम हो जाए। जनरली 80% इज एक्सेप्टेबल मार्जिन फॉर रिलायबिलिटी। 3 criteria comprises the reliability of a content analysis। जो reliability होता है उसको 3 तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। पहला है स्टेबिलिटी, दूसरा रिप्रोड्यूसिबिलिटी, थर्ड वन इज द एक्यूरेसी। स्टेबिलिटी क्या है, द टेंडेंसी फॉर कोडर्स टू कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड द सेम डेटा इन द सेम वे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आप किसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक तो आपने किया है जनवरी में एक्सपेरिमेंट और दूसरा कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर में, तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, तो वही चीज कर रहे हैं, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मींस जो डेटा आपको मिला है, आपको सेम डेटा आफ्टर सम टाइम रिप्रोड्यूस, यानी कि सेम रिजल्ट आने चाहिए, तो that is called reproducibility। tendency for a group or coders to classify categories membership in the same way, यानी कि वो बार बार वही रिजल्ट मिले।
अगर रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं है मींस या तो आपके प्रोटोकॉल में कुछ इश्यू है या फिर जो रिपोर्टेड है उसके प्रोटोकॉल में कुछ इश्यू है। थर्ड वन इज द एक्यूरेसी। जब आप इस चीज को करते हैं, ये तीनों जो स्टेप्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। स्टेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इन द सेंस कि आपके रिजल्ट है वो एक्यूरेट होने चाहिए। एक्सटेंड टू विच द क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट करस्पॉन्ड्स टू ए स्टैंडर्ड और नॉर्मल स्टेटिस्टिकली। आप स्टेटिस्टिक लगाएं तो आपके जैसे प्लस माइनस एरर्स होती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का लेवल आया आपका मान लीजिए कि 12 पॉइंट और ये फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि आज आपका 12 आया है, 7 दिन बाद आपका 12.5 है या 13 है, तो 12 और 12.5 पहले तो मैं दो वेरिएबल को देखूंगा कि इनके बीच में मतलब 2-3 डेटा और लेके कि एरर कितना है। अगर एरर इनका स्टैटिस्टिकली यानी कि स्टैटिस्टिक को लगाने के बाद अगर लेवल में है, रेंज में है, प्लस माइनस रेंज में है, तो मींस नॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस। अगर जैसे मेरा 12.5 आया और एक महीने बाद मेरा आ रहा है 15.5, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, इसको बोलेंगे सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है, मेरे स्टैटिस्टिक लगाने के बाद चेंजेस आए। तो एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये तीन चीजें रिलायबल बनाती हैं आपके किसको, डेटा को, टेक्स्ट को या एक्सपेरिमेंट को। वैलिडिटी क्या होता है, इसके भी हम 3 क्राइटेरिया करते हैं। एक तो क्लोजनेस ऑफ कैटेगरीज, दूसरा कंक्लूजन्स। तो क्लोजनेस ऑफ कैटेगरीज में दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग मल्टीपल क्लासिफायर्स to arrive at an agreed upon definition to each specific categories. Using multiple classifiers, a concept category that may be an explicit variable can be broadened to include synonyms or implicit variables. इसमें क्या होता है कि जो कैटेगरीज आपने किया बनाए थे, कोड्स की कैटेगरी बनाई थी, फिर उनकी सब कैटेगरीज बनाई थी। अब इन सब कैटेगरीज के बीच में जो क्लोजनेस होती है उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है, उनको हमें एनालिसिस में उन सब चीजों को बार बार देखना होता है कि हाँ कंटेंट एनालिसिस में इनके बीच में क्लोजनेस है या नहीं है। नेक्स्ट वन आता है, अगर रिलेटेडनेस के बारे में बात करते हैं, वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं, कंक्लूजन्स। व्हाट लेवल ऑफ इम्प्लीकेशन इज अलाउड। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि इम्प्लीकेशन किस लेवल का होना चाहिए। डू कंक्लूजन करेक्टली फॉलोड बाय द डेटा। दूसरी चीज एड्रेस करने वाली ये होती है कि कंक्लूजन में क्या हमने जो कंक्लूजन किया है वो करेक्टली जो डेटा है वो फॉलो किया है, जो डेटा का सेट ऑफ है उसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन निकाला। आर रिजल्ट एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिनोमेना। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं जो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं वो तो है ही है, क्या इस चीज से किसी दूसरी उसकी क्वालिटी है या फिर उसका ट्रेंड है वो भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्या ये आंसर मिल रहे हैं हमें। ये 2-3 जो क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला बोला व्हाट लेवल ऑफ इम्प्लीकेशन इज अलाउड, दूसरा डू कंक्लूजन करेक्टली फॉलो बाय द डेटा, आर रिजल्ट एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिनोमेना। ये 2-3 चीजें हमें चेक करनी होती हैं। This become especially problematic when using computer software for analysis and distinguish between synonyms. For example, the word mine variously denotes as a personal pronoun. ये हमारे personal use होता है। An explosive device and a deep hole in the ground from which ore is extracted. ये next slide में देखेंगे इसका। Software can obtain an accurate count of that word. सॉफ्टवेयर इसको एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ कितने टाइम, occurrence and frequency, कितने टाइम अपीयर हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बट नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एन एक्यूरेट अकाउंटिंग ऑफ द मीनिंग इनहेरेंट इन ईच पर्टिकुलर यूजेस। लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि ये वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ, किसके रिलेटेडनेस यूज, मतलब क्लोजनेस किसके साथ थी इसकी। This problem could throw off one's result and make any conclusion invalid. अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है तो ये आपके जो रिजल्ट हैं उनको हैम्पर्ड या फिर
बोल सकते हैं इनवैलिड कर सकता है। नेक्स्ट वन है जनरलाइजेबिलिटी ऑफ दीज रिजल्ट टू द थ्योरी। थ्योरी जो आपके रिजल्ट आए हैं, थ्योरी के साथ क्या रिलायबिलिटी रहेगी, या डिपेंडेंट ऑन द क्लियर डेफिनेशन ऑफ कंसेप्ट कैटेगरीज, हाउ दे आर डिटरमाइंड एंड हाउ रिलायबल दे आर at measuring the idea once seeking to measures। generalizability ये क्या होते हैं, parallelly reliability as much of its depend on three criteria of reliability। जो 3 क्राइटेरिया होते हैं हमारे रिलायबिलिटी के, ये वाले स्टेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड एक्यूरेसी, ये किस पे डिपेंड, ये किस पे, generalizability parallels reliability as much of it depend on 3 criteria of reliability। यानी कि ये स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन पे डिपेंड करते हैं। फाइनली ये हमारे 2 जो स्टेप्स थे, कंसेप्चुअल एनालिसिस और रिलेशनल एनालिसिस, ये दोनों हमारे यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पर्पस से। ये तो सारी चीजें हमने डिस्कस की आपके साइंटिफिक पर्पस से, यानी कि एक्सपेरिमेंट में क्या इशू आते हैं, उस वहां हमें क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का मतलब चीजों को स्टेप बाय स्टेप हमें रिजॉल्व करना है। अब एग्जाम क्वेश्चन पर्पस से ये क्वेश्चन आते हैं कि एडवांटेज क्या है, जैसे व्हाट इज कंटेंट एनालिसिस, who was the father of content analysis, third one is the what are the advantage of content analysis या disadvantage of content analysis। तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए ये आपका advantages of content analysis, कंटेंट एनालिसिस हम करते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है या क्या उपयोगिता है, किस लिए करते हैं, ये पॉइंट वाइज हमने इसमें रिप्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट वन है ये जो कंटेंट एनालिसिस के जो एडवांटेज हैं वो ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू द डायरेक्टली एग्जामिन्स कम्युनिकेशन यूजिंग टेक्स्ट, जो फर्स्ट इसका बेनिफिट है। दूसरा क्या है, अलाउज फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये दोनों चीजों के लिए यूज होता है और दोनों चीजें प्रोवाइड कराता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। प्रोवाइड्स valuable historical and cultural insight over time, यानी कि आपको ये क्या कहते हैं, कंटेंट एनालिसिस किया है, स्टेप वाइज किया है, तो ये आपको एक कहते हैं ना कि हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंसाइट। अगर आपका सब्जेक्ट, ये मैं साइंटिफिक उसमें जाएंगे हम, आप हार्डकोर साइंस में जाएंगे तो हिस्टोरिकल और कल्चरल से रिलेटेड हो जाएगा कि कोई आप डिजीज है जो इनक्यूरेबल है, लाइक HIV है और हेपेटाइटिस है और कैंसर्स वगैरह हैं, तो इनमें क्या ट्रेंड में चेंजेस आया, कोई ड्रग कितना इम्पैक्टेबल हुई वो, और उसकी हिस्ट्री क्या थी और इसका इंसाइट क्या रहेगा। लेकिन ये जो वर्ड लिखा हुआ है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, इट इज ऑल्सो यूजेबल इन जो आपका आर्ट, जो बोलेंगे ना कि आर्ट वाला सब्जेक्ट होता है, कंटेंट एनालिसिस वहां पे भी करना होता है, तो उसमें भी जो रिव्यू होता है उसको एनरिच करता है, यानी कि एक लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। अलाउज ए क्लोजनेस टू डेटा, जैसा हमने लास्ट में बोला था, क्लोजनेस एंड वैलिडिटी, उन दोनों चीजों को ये क्लोजनेस को बताता है। कोडेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट कैन बी स्टेटिस्टिकली एनालिसिस, जो कोड्स होते हैं, जो डेटा हमारे पास इंटरप्रेट करके आते हैं, हम उसको उसमें स्टेटिस्टिक का यूज करके उसको एनालिसिस कर सकते हैं। अनऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स ऑफ एनालाइजिंग इंटरेक्शन, जो हमारा रिलेटेड डेटा नहीं था या फिर अनयूजेबल डाटा था जिसको हम अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू कॉम्प्लेक्स मॉडल्स ऑफ ह्यूमन थॉट एंड लैंग्वेज यूज, ये इसका बेनिफिट है कि ये इंसाइट प्रोवाइड कराता है कॉम्प्लेक्स मॉडल्स के बारे में, ह्यूमन थॉट्स के बारे में और लैंग्वेज के यूजेस के बारे में। When done well, यानी कि जो कंटेंट एनालिसिस अगर अच्छे से किया है, is considered a relatively exact research method. Okay, content analysis is a readily understood and an
इनएक्सपेंसिव रिसर्च मेथड। इनएक्सपेंसिव है, डेफिनेटली आपको यूज करना है, इसमें कोई ना तो फाइनेंस की जरूरत है, ना फिर कोई किसी अदर चीज की रिसोर्सेज की जरूरत है। इट्स एन इनएक्सपेंसिव रिसर्च मेथड। A more powerful tool when combined with other research methods such as interviews, जो कि रिसर्च में other methods frequently या well reported हैं, like interviews, observation जो करते हैं हम, किसी का क्वालिटेटिव जो डेटा होता है उससे हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे निकालते हैं। एंड यूज ऑफ आर्काइवल रिकॉर्ड्स, जो पुराने डेटा हैं उनको हम यूज करना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम पुराने इंफॉर्मेशन को, जो भी उस आपके टॉपिक से रिलेटेड है उसको डिग आउट करते हैं, उसमें छोटी छोटी चीजों को मतलब ब्रॉडली करंट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या मतलब चल रहा है, इस पे मेरे जो रिसर्च का टॉपिक है वो किस तरीके से अलग डायमेंशन देगा, यानी कि मेरी इमेज कैसे बनेगी। लोगों को भी ऐसा ना हो कि जो टॉपिक पहले किसी ने कर रखा है मैं उस पर कर रहा हूँ, उसका कोई मीनिंग नहीं है, आज नहीं तो कल कल मतलब वो चीजें पकड़ में आ जाती हैं। इट इज अ वेरी यूजफुल फॉर एनालाइजिंग हिस्टोरिकल मटेरियल, स्पेशली फॉर डॉक्यूमेंटिंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। तो ये कोई डेटा होता है कि आपने ग्रेजुअली, जैसे फॉर एग्जांपल 1980s में कैंसर प्रोजेक्ट आए, 1960 के टाइम पे मलेरिया पे रिगरसली काम चल रहा है, तो इनिशियली स्टेज से आज एडवांस स्टेज में क्या क्या इसमें चेंजेस आए, क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हुए, तो उन सब चीजों पे इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। अब जैसा एडवांटेज है वैसे ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कंटेंट एनालिसिस के। तो एग्जाम में एडवांटेज और डिसएडवांटेज और कंटेंट एनालिसिस के बारे में पूछा जाता है। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? कैन बी एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग, ओके, टाइम कंज्यूमिंग है, इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज्ड एरर particularly when relational analysis is used to attain a higher level of interpretation। इसमें क्या है कि जो रिलेशनल एनालिसिस होता है, कंसेप्चुअल वाले को हम बात नहीं करेंगे, रिलेशनल एनालिसिस होता है यूज्ड टू अटेन ए हायर लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये थोड़ा इसके लिए ज्यादा हमें एफर्ट्स की जरूरत होती है एनालिसिस करने की, इंटरप्रिटेशन के लिए। तो इस वजह से ये क्या होता है, थोड़ा टीडियस हो जाता है। इज ऑफन डिवॉइड ऑफ थ्योरेटिकल बेस और अटेम्प्ट्स टू लिबरली to draw meaningful inference about the relationship and impacts implied in a study। तो इससे क्या होता है, डिवॉइड द थ्योरेटिकल बेस। कई बार क्या होता है कि जो थ्योरेटिकल बेस यानी कि जो डेटा हमें इंफॉर्मेशन होता है उसकी वजह से कई बार हम मीनिंगफुल क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये कंटेंट एनालिसिस, जैसे किसी ने रिपोर्ट कर दिया या कोई रिपोर्ट है कि ये नहीं हुआ था, तो आप हमेशा उसको ऐसे जज करेंगे कि नहीं ये सब्जेक्ट रिसर्च के लायक नहीं है, या फिर इस पर रिसर्च नहीं किया जा सकता है, या फिर इसका जो डेटा है वो इनसफिशिएंट है। तो ये सब चीजें भी इसके साथ होती हैं। ये इसका कंटेंट एनालिसिस का क्या है डिसएडवांटेज है। It's inherently reductive, particularly when dealing with complex text। रिडक्टिव होता है जो हमने प्रोसेस रिडक्शन करते हैं, तो इनहेरेंटली रिडक्टिव है। टेंड्स टू ऑफन टू सिंपली कंसेप्ट ऑफ वर्ड्स डॉक्यूमेंट। 22 ही शो हो रही है हमें। कौन सा? 22 शो हो रहा है? ओके ओके 23। अब 23 हो रहा है? यस सर। ओके, तो जो पहले 22 में जो स्लाइड में था वो एडवांटेज थे, वो आप पॉइंट वाइज उनको याद करेंगे। एग्जाम में आते हैं उनको पॉइंट वाइज ही लिखना है, थोड़ा एक्सप्लेन करना है वर्ड के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट 23 स्लाइड में हम इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कंटेंट एनालिसिस के। तो अभी हम इनहेरेंटली इनहेरेंटली रिडक्टिव पर्टिकुलरली व्हेन डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट। ये हमें पता है कि हम रिडक्शन फेज में जाते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं। तो इट्स डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट। अगर ज्यादा जार्गन्स वगैरह को हटाना या फिर इन्फरेंस को एक प्रिसाइज वे में करते हैं तो
ऑब्वियसली इसका एक रिडक्टिव नेचर है कंटेंट एनालिसिस का। टेंड्स टू ऑफन टू सिंपलीफाई कंसिस्ट ऑफ वर्ड काउंट कर मतलब करते हैं, तो वो थोड़ा हमारे साथ चैलेंजेस आ जाते हैं कि कंटेंट एनालिसिस में वर्ड बार बार रिपीट ना हो, इंफॉर्मेशन रिपीट ना हो, डेटा रिपीट ना हो, डेटा इन द सेंस कि नंबर्स आप बार बार नहीं लिख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का लेवल 12.6 आया तो आप बार बार उस चीज को लिखें कि 12.6 12, तो आप उस चीज को नहीं लिख पाते हैं। तो कई जगह ऐसा महसूस होता है कि ये इरेलेवेंट नहीं बोल सकते उसको, कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये इसका नेचर है। ऑफन disregards the context that produced the text as well as the state of things after the text is produced। जब एक बार डेटा प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर आप उसमें कॉन्टेक्स्ट में प्रोड्यूस द टेक्स्ट एज वेल एज द स्टेट, उसके जो सिनोनिम्स और क्या बोल रहे हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, उसकी रिलेटेडनेस और वैलिडिटी को आप फिर चैलेंज नहीं कर सकते हैं, और वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड में कंज्यूम मतलब टाइम ले चुका है। तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। कैन बी डिफिकल्ट टू ऑटोमेट और कंप्यूटराइज। ये कंटेंट एनालिसिस में अगर टेक्स्ट वाला है ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हमने बताया, डिस्कस किया था स्लाइड पे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, बट क्या वो जो चीज हटाई है वो हटाने के बाद सेंटेंस यूजफुल रहेगा या उसका मीनिंग करेक्ट ही निकलेगा, या फिर जो डेटा, ये टेक्स्ट के पर्पस में हो गया। अगर आप बात करें डेटा के पर्पस में, आपने अगर डेटा का नंबर हटा दिया, बार बार रिपीटेशन के चक्कर में सॉफ्टवेयर तो उसको हटा देगा। अब वो हट गया और उसको पढ़ते टाइम वो नंबर शो नहीं हो रहा है, तो फिर जो ऑडियंस है, ऑडियंस यानी कि पढ़ने वाला या सुनने वाला है, उसके माइंड में मिसजज करा देगा, मतलब वो मिसलीड करने वाला हो जाता है। तो ये क्या है, कंटेंट एनालिसिस के कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो प्लीज ये दो लास्ट वाली 22 एंड 23 स्लाइड्स को फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि ये पूछते हैं कई बार। और ये है 24 जो स्लाइड है, इट्स टॉकिंग अबाउट मैंने जो 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 आपके लिए मटेरियल चूज किया है, जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, उसका रेफरेंस है कि मैंने इन सब चीजों को कहाँ कहाँ से लिया है। जो 1958 में बेरेलसन एट ऑल जो 1952 में बताए थे, वो फादर ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैं, उनकी ये बुक है। और ब्यूशा, ये चार्ल्स रिसर्च मेथड इन लाइब्रेरियनशिप, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलियंस का ट्रेंड्स इन कंटेंट एनालिसिस, क्रिपेंडर्फ, क्लाउस हैं। स्लाइड विजिबल नहीं है जी 23rd स्लाइड है सर। ओके या यस इसमें जो टेक्स्ट वगैरह मैंने यूज किया है या इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, तो ये सोर्स है, मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन ली है। तो यू कैन लॉग इन टू दीज इंफॉर्मेशन एंड फाइंड आउट ऑन द नेट। अगर आपको कुछ चीजें पढ़नी हो एक्स्ट्रा और डेप्थ में, तो यू कैन लॉग इन on these textbook chapters and methodological article भी मैंने कुछ इंक्लूड किए हैं। 3 approaches to qualitative content analysis हेल्थ रिसर्च में, ये इसका रेफरेंस है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन आर्टिकल हैं, ये कुछ ये भी आपको मिल जाएंगे। और ये सॉफ्टवेयर हैं जो अवेलेबल हैं, और वेबसाइट, यहाँ से आप इन सब चीज़ों को और डिग आउट कर सकते हैं। एंड नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप क्वेश्चन कोई भी हो पूछ सकते हैं। हेलो हेलो जी सर। हाँ, मैंने कहा ये आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ है और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो आपकी। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी। नो सर, आई थिंक ओवर।
ये पीपीटी स्लाइड्स आप लोगों को मिलेंगी क्या? सर आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे, रिसर्च डिपार्टमेंट में शेयर कर देंगे तो सर मिल जाएगी हमें। ओके, मैं ये सारी स्लाइड्स और कुछ जी, जी, जी। बुक्स वगैरह हैं, मैं वो शेयर कर दूंगा आप लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू। और इससे सर, रिलेटेड, हाँ यस, आप रिसर्च डिपार्टमेंट में सर शेयर कर दीजिएगा, हम लोग को मिल जाएगी पीपीटी फिर। ठीक 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 बात। ओके, थैंक यू सर। हमारे दूसरी क्लास है सर 3 o'clock, अभी एक और। ओके ओके, ठीक, फाइन फाइन फाइन, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, गुड लक। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.